Okay, Bismillah Rahman Rahim. So let's start this lecture. Last time we were talking about the normal mode analysis, and we have actually tried to understand some application that why we actually do modal analysis or why we actually solve multi-degree of freedom systems. So that you can understand that how what are the system natural frequencies, how many the natural frequency system has, and secondly, what are the mode shapes, which means at each frequency, at each natural frequency, what is the shape of vibration of the system. So that is the two main purpose why we do modal analysis. Modal analysis is basically used for the high degree of freedom system like 3, 4, 5, up till infinite degree of freedom systems. But because again, as I told you in the last lecture, that and it solve analytically, it requires a lot of time to even solve a 2 degree of freedom system. So generally, we do not able to solve the high degree of freedom like 10 or 20 or 30 degree of freedom system. Generally, we use the softwares to find the mode shapes and the natural frequencies. So let's continue what we have doing last time. So last time we have started modeling the the main topic is normal mode analysis. This is, as I told you in the last lecture, this is chapter number 5 of the Thompson book. Okay, so as I told you in the last lecture that we will solve four systems. Our first system is a translational system. Second is the rotational system. Third is the double pendulum. And fourth is the coupled pendulum. Because of the generating ease in your course, I will only solve, yeah, the course only includes 2 degree of freedom system. The last time when I was teaching this course, I've solved up to 3 degree of freedoms. But I understand from the last time that 3 degree of freedom even harder to solve. So in the let's say in this year, I thought that I should only restrict myself to 2 degree of freedom systems. So you have the norm mode analysis for these four systems, but these four systems will be only 2 degree of freedom. Now, what is the variation in within 2 degree of freedom system? I will tell you when we actually try to solve the system. So the first system that I'm going to solve is a translational system, or you can say translational 2 degree of freedom system. And because of the lack of time, I will only solve the one system, that is translation system, and I will actually give you an idea how to develop equations for the rest of three systems, and then you have to solve yourself. Why? Because the solution procedure is same for all four systems. The only difference between the four system is their governing equations. Their governing equations are different from each other. But when you have developed the governing equation, the rest of the procedure to solve the systems are exactly the same. So that's why I thought that I should spend my time in only solving one system, to the complete one system, that is translational to the freedom system, and then I will tell you how to generate equations for the rest three systems so that you can practice yourself after this lecture, the other three systems related to normal mode analysis. Okay, so as we are discussing last time, so I'm again writing the equations so that they will be you can be connected to the what we are doing last time. So let's say this is M1, this is K1, this is M2, this is K2. So now we have two masses and we just put our rollers in between.
So, so it giving an idea that there will be no vertical motion because these rollers restricts the vertical motion. So there will be only a horizontal motion um, of the masses. So the coordinates, this is x1 of t and this is x2 of t. So we have two coordinates for two masses. X1 of t is a coordinate for the one mass, mass m1, and so sorry. This is K2, this is K3. So we have coordinate x1 for the m1 and x2 for the m2. And rollers are placed so that there will be no vertical motion, like there will be no y1 or y2 like that. And one thing that I told you in the last lecture, just to revise a very important point, that is the number of degrees of freedom is equals to the number of governing equations equals to the number of natural frequencies equals to the number of mode shapes. That is a rule in normal mode analysis. That if first you have to find number of degrees of freedom. Whenever you have correctly find the number of degrees of freedom, you exactly know what are the number of governing equations of the system, and then you exactly know what number of natural frequency of the system, and then you know what the number of mode shapes of the system. So first of all, it's very important to find the degrees of freedom of the system. This is a generalized rule. So for this case, the degrees of freedom is equals to, as I told you in the first lecture, or just revise this very important point. So degree of freedom is equals to number of independent masses. So we have two independent masses, so use 2 multiply by number of independent coordinate of each mass. Each mass means if you have two masses, how many number of coordinates each mass has? So each mass has one coordinate. It's a 2 degree of freedom system. So it's a definition that we have actually learned about in the first lecture, and it is worth repeating here because if you have just mistaken the degrees of freedom, then definitely you will actually have do not able to develop the number of equations that we want it to solve these systems. So number of degrees of freedom, now exactly know that we have now two equations to solve because number of degrees of freedom are 2. Now, for this system, we have two approaches. I told you the first approach the last time, but I thought it really good to give you a free body diagram of these two masses so that you now will able to understand that how we write those equations. And then I will give you a thumb rule, which I have developed over last many years of solving these systems without developing the free body diagram. Both equations are exactly the same, but the idea, the actual way of writing the equations is I just draw a system again. Clear? So the most important way, yeah, you can say the most the actual way of writing these equations is to draw free body diagram. So in a free body diagram, so let's say this is M1, this is M2. Do not actually draw springs. So we actually represent the spring forces here. M2. Okay. If we displace the M1, if we displace M1 on the right, let's say by 1 unit or 1 inch, look at all other displacements. So before that, if M1 and M2 are stationary, there will be no forces on spring. Clear? So there will be no vibration. Vibration only occurs when M1 M2 starts to move. So for example, if we move this M1 to a right,
by an amount equals to 1 inch, 1 inch or 1 mm or 1 centimeter or whatever that is. See, this spring, when it moves, M1 moves towards the right, this spring, this spring tends to stretch, which generates a backward force, because when it stretch, it develops a reaction force in the backward direction, which is equals to K1 times X1. Yeah. So just focus on M1. So when I move M1 on the right side, okay, on this side, by an amount equals to a unit displacement, because of this, the K1 spring actually stretched, will generate a reaction force in the left direction. Okay, so we have inertial force which is equals to M1 x1 double dot due to our disturbance on the right hand side, and then we have the spring force K1 that is in the left direction because it has been stretched and it generates a backward force. Now for this case, for the spring, now because of the motion of M1, M1 will also move towards the right, but not by an amount equals to M1. Why? Because it's a spring. So yes, there is a slight movement because inertia will transfer to the M2, but not as such that if I move M1 by 1 inch, so M2 also move by 1 inch because there is a spring in between. And the spring actually do not allow M2 to move in the same distance as M1 moves. But because of the transfer of inertia, there will be a slight movement of the M2 on the right hand side. We don't exactly know what that movement is because we have to write equations for that. But theoretically, by looking at the system, it will slightly move toward, it can't move toward the left because it doesn't have its own inertia towards the left, but it slightly moves on the right. So we have now the disturbance in the second system, which is M2 x2 double dot, the inertia of the second mass. Now because if this mass moves towards the right by, let's say, 1 inch, and this mass moves towards the right, as I told you, move towards the right by about ½ inch, so there will be a compression here. There will be a compression here. I just repeat again that if M1 moves towards the right by, let's say, amount of unit displacement, the M2 also moves towards the right, but not that distance that M1 moves. So there will be a compression in the spring. Due to this compression, there is an extension force generated on the either side of the spring. Yeah, because spring has been compressed, so reaction force will be try to stretch the spring so that it will apply the forces in these direction on the masses. So this is equals to Kx1 minus x2. Yeah. Because there's a relative motion between two masses, so the net displacement is K1 Kx1 minus x2. Clear? Now someone can say why x1 minus x2, because the actual disturbance that we created is within x1, and we know from this free body diagram that the x2 will not necessarily move by a distance equals to x1, but actually it's smaller than x1, so we have to write x1 minus x2. I am talking about free body diagram. Clear? Now because M2 also moves towards the right, so there's a net because this spring axis is now compressed because it has moved towards the right. So we generated a force which is extension force that is equals to K3x2. This is the free body diagram. Clear? So this is the way that free body diagram develops, but I will give you another idea that we actually done last time. So just write those equations. So equation. Excuse me, sir. G please, yes. सर जो हमारा स्प्रिंग है सेंटर में लगा हुआ, यू आर सेइंग कि दैट इज इन कंप्रेशन, तो एज Yes. अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन इट इज एक्सर्टिंग फोर्सेस इन द एक्सियल डायरेक्शन, मतलब जो कंप्रेशन के अगेंस्ट वो काम कर रहा होगा, हमारे पास जो फोर्सेस वो लगा रहा है वो टुवर्ड्स द मैसेज लगा रहा है, तो इसका मतलब वो जो रिएक्शन दे रहा है वो एक्सटेंशन में दे रहा है वो एक्सटेंशन मिलेगा जी। सर। और इस तरह हमारे पास सेम सिनेरियो आगे भी हो रहा है, क्योंकि जी वो बिल्कुल। हमें ऐसे
कंप्रेस हो रहा है तो वो हमें एक्सटेंशन में वो दे रहा है। एक्सटेंशन में दे रहा है, जो K1 है वो एक्सटेंड हो रहा है, वो कंप्रेशन में दे रहा है। आप डायरेक्शंस गौर सही होता करेंगे है, कि रिएक्शन उल्टे हो गए। हाँ जी, अगर आप डायरेक्शंस गौर करें M1 M2 की, तो M1 राइट साइड पे जा रहा है तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, उसकी वजह से जो फोर्स यस आ सर। रही है वो कंप्रेशन साइड पे आ रही है, ठीक है। इसी तरह K2 यस जो सर। है वो कंप्रेस हो रहा है बिकॉज दोनों की मूवमेंट बराबर नहीं है, उसकी वजह से वो एक्सटेंशन दे रहा है। जी और सर। K3 चूंकि कंप्रेस हो रहा है अगेन उसी तरीके से, तो वो भी एक्सटेंशन फोर्स दे रहा है, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। और चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि x1 x2 चूंकि बराबर नहीं है और हमें पता है कि x1 ज्यादा है, इसलिए क्योंकि अब अगर तो रॉड हो फिर तो उतना ही मूव करे जितना x1 और x2 मूव, अगर अगर m1 m2 के दरम्यान में रॉड हो तो फिर तो दोनों एक बेसिकली एक ही मैच होगा। लेकिन चूंकि दरम्यान में स्प्रिंग है तो x2 स्मॉलर होगा x1 से, ये हमें पता है, बिकॉज ये अगर आप खुद भी इमेजिन करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये उतना मूव नहीं करेगा। उसकी वजह से हमारे पास स्प्रिंग कंप्रेस होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन जो है वो x1 ज्यादा है, इसकी वजह से एक्सटेंशन फोर्सेस आएंगी दरमियान में। तो हमारे पास अगर हम इक्वेशन लिखें m1 की, तो m1 x1 डबल डॉट। अब आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में m1 x1 डबल डॉट है उस साइड की फोर्स को पॉजिटिव लिखना है, और अगर जिसकी उल्टी डायरेक्शन में उस साइड को नेगेटिव लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो m1 x1 डबल डॉट की डायरेक्शन थी वो राइट साइड पे पॉजिटिव थी। सो अब गौर करें इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दोनों फोर्सेस जो है वो लेफ्ट साइड पे लग रही है, एक ये वाली फोर्स लग रही है और एक ये वाली फोर्स लग रही है। तो हम लिखेंगे -K1 x1, बिकॉज उल्टी डायरेक्शन में तो नेगेटिव लिखनी पड़ेगी, -K2 K2 x1 x2, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में आपकी इनिशियल फोर्स होगी उस डायरेक्शन की फोर्सेस को आप पॉजिटिव लेंगे, और जिस डायरेक्शन में आपकी इनिशियल फोर्स नहीं होगी उसको आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये आपको इक्वेशन आ गई फर्स्ट मैथ्स की। इक्वेशन फॉर मैथ्स 2, अब देखिए वही रूल है, m2 x2 डबल डॉट इज इक्वल्स टू। अब देखें ये वाली जो फोर्स है ये इन द डायरेक्शन ऑफ m2 x2 है, तो आप उसको प्लस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, सेम फोर्स, ठीक, सेम फोर्स, ठीक है। और ये वाली फोर्स चूंकि लेफ्ट साइड पे है तो हम इसको सर ये लिखेंगे, K2 होगा ना सर? जी हाँ सर ये ये K2 K2 होगा, ये K2 होगा जी, बिल्कुल ठीक है, ये K2 होगा। ये समझ आया पॉइंट सारों को, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्सेस हैं उस डायरेक्शन में आप अगर आपकी इनिशियल फोर्स राइट साइड पे है, तो उस डायरेक्शन में जितनी फोर्स होंगी उसको आप पॉजिटिव लिखेंगे, और उसकी ऑपोजिट जो फोर्स होगी उसको नेगेटिव लिखेंगे। ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी यस। सर एक बार आपने मॉडलिंग के दौरान बताया था कि जब हम स्प्रिंग की फोर्स लेते हैं तो उसे नेगेटिव लेते हैं। तो सर ये जो हमने K2 ली है सर, ये फिर पॉजिटिव हमने ले ली। ये मैं आपको इसलिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मैं आपको बताने लगा हूँ, वो जो एक्चुअल रूल है मॉडलिंग का वो यही है, ठीक है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वो इसलिए बताया था कि वो एक थंब रूल मैंने डेवलप किया है, उससे क्वेश्चन दिखना आसान होती है इसके मुकाबले में। आपने गौर किया कि आप कितना मतलब देख रहे हैं कि अच्छा वो फोर्स किधर होगी, इधर जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा। जो मैंने आपको लास्ट टाइम, ये तो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम से मेथड, मैं आपको इसलिए दोनों बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर ने फ्री बॉडी, क्योंकि एक्चुअल तरीका ये यही है इक्वेशन लिखने का, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम से। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया था वो क्या बताया था कि आप बजाय फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के आप इक्वेशन ऐसे लिखें कि आपके पास दो रूल, जैसा मैं अगर m1 x1 लिखता हूं, तो पहले मैंने रूल बताया था कि स्प्रिंग फोर्स, जो आपने अभी बात की बिल्कुल ठीक बात की, मैंने दो रूल बताए, एक स्प्रिंग फोर्स will always be negative, ये एक थंब रूल है। और दूसरा थंब रूल ये है कि जो जिस मैस को द मैस विच इज कंसिडर्ड इन द इक्वेशन is taken
its motion is considered as dominant. ये दो रूल्स हैं, ये आप ये कह लें कि ये रूल कोई किसी बुक, मैंने असल में एक लेक्चर में भी सुना है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, और एक दो बुक्स में ये रूल लिखा है, लेकिन ज्यादातर आपको ये रूल नहीं मिलेगा कहीं पे भी। उसकी वजह ये है कि जो एक्चुअल तरीका है वो तो फ्री बॉडी डायग्राम से बनाने का तरीका है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको इक्वेशन बनाने का तरीका आ जाए, दोनों का रिजल्ट एक ही आता है, लेकिन जो आप जो बात कर रहे हैं, अगर हम इस रूल्स, दो थंब रूल्स को देखें, तो अगर हम फर्स्ट, अब आप डायरेक्शंस को छोड़ दें, इसके अंदर दो स्प्रिंग लगे हैं, तो -K1 X1 ये वाली फोर्स हो गई, और -K2 X1 X2। अब चूंकि मैं मैथ्स 1 की लिख रहा हूं, तो मैंने X1 X2 लिखा, यानी कि X1 को मैंने डोमिनेंट कंसिडर किया। जब मैं सेकंड मैथ्स की लिखूंगा, तो जिससे मैंने को बताया इसमें भी दो स्प्रिंग लगी, अब मैं डायरेक्शन नहीं देख रहा, मैं लिख रहा हूं -K3 X2 -K2, और अब चूंकि मैं मैथ्स 2 के लिए लिख रहा हूं, तो मैं इसकी मोशन को डोमिनेंट लूंगा, यानी कि X2 X1। ठीक है, ये मैंने आपको दो रूल्स बताए थे। ठीक है, ये दो रूल्स जब आप इसको फॉलो करेंगे तो फिर इक्वेशंस ये बनेगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम में बनाने का। अब आप अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, तो पहली इक्वेशन तो सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है इसमें। दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है X2 माइनस, अगर मैं इसको X1 X2 लिख लूं, माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन वही बन जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है। ये पॉइंट समझ आया सारा को? यस सर। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन तो एक जैसी है ना, बिल्कुल। यहाँ मैंने X2 X1 लिख लिया और नेगेटिव के साथ लिखा। अगर आप ऊपर इसी को माइनस और कॉमन लेके बाहर निकाल दे, वो प्लस हो जाएगा। इक्वेशन एग्जैक्टली वही आएगी जो ऊपर वाली आई थी, लेकिन इसके लिए आपको दो थंब रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको बताया राइट साइड पे, ये वाले दो थंब रूल, और इसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं आपके लिख सकते। तो ये आपकी मर्जी है। ये तो मैं आपको इसलिए, ये जो मैंने आपको नीचे वाला मैथड बताया मैंने खुद पढ़ पढ़ के डेवलप किया। ये मुझे लगता था ये आसान है उस ऊपर वाले से। ठीक है, लेकिन किसी को समझ नहीं आती, तो जिस तरह मैंने आपको बताया फ्री बॉडी डायग्राम से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, इट्स एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, कि आप एक मैच को यूनिट डिस्प्लेसमेंट मूव करें और सोचें कि बाकी मैसेज कहाँ कहाँ मूव करेंगे, कितने मूव करेंगे, उससे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, और डायरेक्शंस के लिहाज से आप इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं। ठीक, और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो ये है। ठीक हो गया? सो हमारे पास जी सर कुछ नहीं सर, कंटिन्यू। ओके, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। सो वन इक्वेशन इज m1 x1 डबल डॉट इक्वल्स टू -k1 x1 -k1 x1 x2, और दूसरी इक्वेशन है m2 x2 डबल डॉट इज इक्वल्स टू -k3 x2 -k2, या इसको मैं जो इक्वेशन लिखी हुई है उस तरह लिख लेता हूँ, एक ही बात है दोनों लिखे। अच्छा, यहाँ हमारा काम खत्म हो गया है। जो सबसे टफेस्ट काम है वो इसकी इक्वेशन लिखना है। अगर इक्वेशन लिखनी, अब तरीका वही है जो हम स्टैंडर्ड हर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हर एक्सक्यूज मी system- सर, जी सर जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें आपने दोनों जगह K1 लिख दिया सर, दूसरे में K2 सॉरी आएगा। सॉरी, राइट राइट। हाँ, ये करेक्शन आते रहा करें, आखिर में थैंक यू वेरी मच, आखिर में आंसर अच्छा खासा गलत हो जाएगा अगर ये मसले हो गए। थैंक यू फॉर योर करेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्शन थी। ओके, सो ये मैंने दो इक्वेशन लिख ली हैं। अब आप x2 x1 लिखें तो माइनस आएगा, x1 x2 लिखेंगे तो प्लस आएगा, एक ही बात है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये इक्वेशन बनाने का तरीका डिफरेंट, ये इक्वेशन डिफरेंट होगी हर सिस्टम की। इससे आगे वाला तरीका वही है जो मैं आपको बताने लगा, वो आपने गौर से समझना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और मैं इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। अगर आप कहते तो मैं इस तरह सॉल्व करता हूँ कॉलम बना के। ठीक है, सो m1 x1 डबल डॉट, आप साइड बाय साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस k1 x1 प्लस k2 x1 x2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और ये आ गई m2 x2 डबल डॉट प्लस k3 x2 माइनस k2 x1 x2
इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, मैंने इसको कॉलम में, अब बेसिकली हमने इसको ना सॉल्व करना है आगे। ओके, आपने इसके बाद जो पहला स्टेप करना है वो क्या करना है कि x1 की टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है और x2 की टर्म्स को अलग कर लेना है। तो आप ये देखें, m1 x1 डबल डॉट प्लस, अब ये k1 है और ये k2 है, तो ये आएगा k1 प्लस k2 टाइम्स x1। यानी कि अगर आप इनकी टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास k1 प्लस k2 x1 के साथ है, प्लस अब चूंकि इसके साथ माइनस है, you get minus k2 times x2 equals to 0। ठीक है, ये हमने क्या किया कि x1, ये आपने हर एक के साथ करना है। जब भी आप इसको सॉल्व करें किसी भी सिस्टम को, तो पहला स्टेप क्या है कि आपने x1 की टर्म्स को अलग करना है, x2 की टर्म्स को अलग करना है। इसी तरह आप इस इक्वेशन में करें, m2 x2 डबल डॉट प्लस, अब आप x1 की टर्म को पहले लिख लें, चूंकि हम इसको सिमेट्रिक करना चाह रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो x1 की टर्म है माइनस k2, ये देखें माइनस k2 इंटू x1, ये देखें, तो ये माइनस का प्लस k2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस k3 इंटू x2 इक्वल्स टू 0। इसको आप, मैंने एक स्टेप छोड़ा है, आप एक स्टेप अगर आप डायरेक्ट भी करें तब भी ठीक है, जस्ट साइन का ध्यान रखिएगा, साइन गलत हो गया फिर आंसर गलत हो जाएगा। साइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो माइनस प्लस साइन है ये आपने वाइब्रेशन में, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल होते हैं। इन साइन को मिस करने का मतलब आपका सारा आंसर जो है वो गलत हो गया। ओके, अच्छा यहां तक समझ आ गई। अच्छा, अब हमने जो है वो क्या करना है, अब हमने इसका सोल्यूशन एज्यूम करना है किस फॉर्म में, लेट सिंपलेस्ट फॉर्म x1 ऑफ t is equals to a1 sin omega t और x1 of t is equals to a1 e iota omega t। आपको याद होगा हमने सोल्यूशन एज्यूम किए हुए हैं दोनों, इसी तरीके से आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक कर सकते हैं इनमें से, a2 sin omega t और a2 equals to e iota, sorry not equals to, और x2 of t is equals to a2 e iota omega t। आप दोनों में से कोई भी सोल्यूशन एज्यूम कर सकते हैं। मैं दो सोल्यूशन लिख लिए। मैं नॉर्मली जो सॉल्व करता हूं वो इस सोल्यूशन के साथ करता हूं, लेकिन आप दोनों के साथ कर सकते हैं। आंसर में कोई फर्क, आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं इसके साथ करूं तो गौर से देखिएगा, मैं इसको यहां पुट कर दूं तो, अच्छा अब चूंकि x डबल डॉट है तो मैं इसका x डबल डॉट भी निकाल लेता हूं। सो x1 डबल डॉट इक्वल्स टू a1 माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अगर किसी कंफ्यूजन नहीं होगी ये फाइंड करने में, जो मैंने लिखा है ऊपर वाले सोल्यूशन, मैंने ये वाला जो रेड लाइन से मैंने नीचे मार्क किया, ये सोल्यूशन मैंने ज्यूम किया और मैंने इसको जो है वो इसका डबल डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि मैंने पूरे इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव है इसलिए का डबल डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको पुट कर दे इन इक्वेशन में, इसको इधर पुट कर दें, इसको आप इधर पुट कर दें। ठीक है, तो ये आ गया m1 और ये आ गया माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस k1 प्लस k2 टाइम्स a1 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस k2 टाइम्स a2 साइन ओमेगा टी। जहां आपके पास x1 आ रहा है वहां आप x1 का सोल्यूशन पुट कर दे, जहां पे x2 आ रहा है वहां x2 का सोल्यूशन पुट कर दे। इसी तरीके से इसमें देख लें m2 और यहाँ पे आएगा माइनस a2 ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस k2 इंटू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस k2 प्लस k3 a2 साइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने एक सॉल्यूशन पुट कर दिया, जो आपको याद होगा हम पहले भी जब मॉडलिंग करते थे तो हमने यही काम किया। ठीक है,
ओके, अब हमारे पास गौर करें तो अगर हम दोनों को डिवाइडिंग बाय साइन ओमेगा टी ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी यही काम करें और यहाँ पे भी यही काम करें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, चूंकि साइन ओमेगा टी डिवाइड करेंगे तो साइड टर्म से साइन ओमेगा टी खत्म हो जाएगा, तो वी गेट माइनस m1 a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2 टाइम्स a1 प्लस माइनस k2 टाइम्स a2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन आएगी माइनस m2 a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस k2 टाइम्स a1 प्लस k2 प्लस k3 टाइम्स a2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी। सर आपने क्या स्टेप किया सर, ये वाला एक एक्सपेरिमेंट बता दें। ये लास्ट स्टेप जो किया मैंने, ये सर ये किससे डिवाइड किया सर? हाँ ये मैंने साइन, आप देखें साइन ओमेगा टी जो है वो आप गौर करें तो ये पहली टर्म में भी है, दूसरी टर्म में भी है, तीसरी टर्म में भी है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमने क्या करना है कि हमने इक्वेशन को दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड पे साइन ओमेगा टी से डिवाइड करना है, ठीक है। जब हम साइन ओमेगा टी से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जितनी साइन ओमेगा टी है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे टू गेट 1, और राइट साइड पे 0 बाय साइन ओमेगा टी वो तो वैसे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास साइन ओमेगा टी की टर्म्स जो है वो खत्म हो जाएगी इक्वेशन से, ठीक है। अब मैंने सिर्फ साइन ओमेगा टी की टर्म्स को खत्म कर दिया, बाकी इक्वेशन एज सच नीचे लिख दी है, ठीक है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी यस। सर इसमें साइन ओमेगा टी सर खत्म कैसे हो सकता है? अगर ये नहीं होगा तो सर वाइब्रेशन ही नहीं होगी। नहीं वो साइन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये खत्म नहीं हुआ, बेसिकली ये मौजूद है, लेकिन हमारे पास एम्पलीट्यूड्स की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। हम अभी जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो एम्पलीट्यूड्स में ले रहे हैं, ये देखें और करें, वाइब्रेशन खत्म नहीं हुई, वाइब्रेशन अभी तक है इसके अंदर। अगर A1 और A2 0 हो जाए फिर प्रॉब्लम यही होगा कि हमारे पास वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन के मौजूद है यहाँ पे। हम फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह समझ लें कि आप जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर हम साइन ओमेगा वाइब्रेशन, हम ये वाइब्रेशन तो है, हम सिर्फ इंटरेस्टेड है इसके अंदर, ठीक है, हम सिर्फ इसके अंदर इंटरेस्टेड है कि इस एम्पलीट्यूड में, इसलिए हम वाइब्रेशन कंसीडर नहीं कर रहे, इसलिए हम साइन ओमेगा टी को कैंसिल आउट किया। हमने जीरो नहीं किया, मतलब जीरो का मतलब ये जीरो ये नहीं किया कि साइन ओमेगा टी को जीरो खाली खत्म, हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट किया, ठीक है, हमने कैंसिल आउट किया, हमने जीरो नहीं किया। दोनों में फर्क होता है, जब आप कैंसिल आउट करते हैं चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, और जब आप जीरो करते हैं मतलब आप मेन इक्वेशन ही जीरो करने लगे हैं। तो ये मैंने नहीं किया कि साइन, हाँ आपके पॉइंट ठीक है, अगर मैं साइन ओमेगा टी को जीरो कर दूंगा एक्स ऑफ टी जीरो हो जाएगा, तो मैंने इसको जीरो नहीं किया, इनफैक्ट मैंने उसे कॉमन लेके कैंसिल आउट किया। क्यों कैंसिल आउट किया है? क्योंकि मैं एक्चुअली में इंटरेस्टेड हूँ एम्पलीट्यूड्स के अंदर, और वो क्यों इंटरेस्टेड हूँ वो आपको भी आगे जाके समझ आएगी कि मैं क्यों ये एम्पलीट्यूड्स ले रहा हूँ, मैं साइन ओमेगा टी को क्यों बाहर निकाल दिया मैंने, क्योंकि वाइब्रेशन खत्म नहीं हुई, वाइब्रेशन इज स्टिल देयर, ठीक। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? ओके सर ठीक है, आ गया सर। वाइब्रेशन समझ गया है, A1 A2 भी मौजूद है, हाँ A1 A2 भी जीरो हो जाए तो हाँ फिर पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, वाइब्रेशन ही नहीं है, खत्म, वो हम जीरो नहीं कर सकते। और वो अभी आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम एक और हैंडल करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अब आपने करना है, अब आपने सेम काम वही करना है जो हमने x1 x2 के साथ किया था। आपने A1 की टर्म्स को इकट्ठा करना है, A2 की टर्म्स को इकट्ठा करना है, जरा गौर से देखिएगा, माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2, ये तीनों टर्म्स है नेक्स्ट A1। पेज पे करते हैं। सर प्लीज नेक्स्ट पेज पे। नहीं नजर आ रहा? यस सर। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, बता दो। अच्छा फिर मैं इक्वेशंस कट कर लूं ताकि दोबारा लिखनी ना पड़े। ठीक है, अब ऊपर इक्वेशन आपको नजर आ रही है ऊपर लाइन में। अब मैं इसी नीचे अब यस सर, आ लिखूंगा, रही। ओके, माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2 टाइम्स A1, ये A1 की टर्म्स आ गई,
प्लस माइनस K2 टाइम्स A2 इक्वल टू 0। वही काम हमने x1 x2 के साथ किया था। अब ये हम क्यों कर रहे हैं आपको इससे अगले स्टेप में समझ आएगी। इसी तरीके से m2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी नॉट, ये तो A2 की टर्म है, सॉरी। A1 की टर्म हमारे पास सिर्फ माइनस K2 है, तो माइनस K2 इंटू A1, ये 1 की टर्म आ गई, प्लस माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर प्लस K2 प्लस K3 इंटू A2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इसमें क्या किया है, हमने A1 की टर्म्स इकट्ठा कर लिया, वो 1 है, 2 है, 6 है, 7 है, जितनी भी है, A1 की टर्म्स को अलग कर लिया, A2 की टर्म्स को अलग कर लिया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है लिखने का वो है मैट्रिक्स लिखना। आपने इसकी मैट्रिक्स बनानी है दो इक्वेशंस की, ठीक है, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की। जो मल्टी फ्रीडम सिस्टम है ये मैट्रिक्स के अलावा किसी और तरीके से सॉल्व नहीं होता, इनकी मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। अगर आप मैट्रिक्स बनाएं, क्योंकि मेरा ख्याल आप इतनी मुश्किल नहीं होगी आपको बनाना, तो ये टर्म आ जाएगी माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2 माइनस K2 माइनस K2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2 A1 A2 is equals to। इससे सारे एग्री करते हैं इस मैट्रिक्स से। यस सर। अब दो इक्वेशंस को आप अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, कुछ भी नहीं किया मैट्रिक्स, अगर इसको आप दोबारा इक्वेशन में लिखेंगे तो दोबारा इक्वेशंस की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई है। अभी मैट्रिक्स क्यों बनाई है हमने, इसलिए बनाई है कि अब हम इंटरेस्टेड है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने में, इसलिए हमने ये मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वालिटी को हमने होल्ड करना है, ठीक है। मैथमेटिकली इस वी हैव टू होल्ड द इक्वालिटी विच इज दिस, ठीक है। अच्छा, इक्वालिटी कैसे होल्ड है, अगर A1 A2 0 हो जाए, एक्सक्यूज मी सर। इक्वालिटी होल्ड। जी जी। सर आपने जो फोर्थ है सर, ये एलिमेंट लिखा है सर आपने मैट्रिक्स का, ओह, सर इसमें ओह, K2 yes, K3 नहीं है। हाँ, राइट राइट राइट। वरना ये कैंसिल हो जाना था उससे। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। K2 K3 ही है। अच्छा, इसकी इक्वालिटी होल्ड करने के लिए A1 A2 0 जब इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी दोनों तरफ, यस सर, हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, तो सिस्टम में वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, यस ट्रिवियल, सर। ठीक है। ट्रिवियल का मतलब किसी को पता क्या होता है, जो सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो सर, यूनिक सोल्यूशन। सॉल्यूशन तो है ये, मतलब वो लगा बात है कि इसके ये सॉल्यूशन लिया नहीं जा सकता, सॉल्यूशन तो ये है इक्वेशन का, इससे एग्री करते हैं ना, ये डिसएग्री नहीं कर सकते, ये लिया नहीं जा सकता। नॉर्मली इसका उर्दू में मतलब होता है रिवायती। रिवायती का मतलब है कि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन जो होता है वो होता है 1 2 0 का, तो ठीक है। तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है, मतलब ये रिवायती है, सीधा सीधा सॉल्यूशन है, सामने नजर आ रहा है आपको, आपको कोई जरूरत नहीं कुछ और करने की इक्वेशन के साथ। लेकिन ये लेते क्यों नहीं है, क्योंकि इससे हमारा मेन पर्पस डाई हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा कैसे इसकी क्वालिटी को बता सकते हैं, इस क्वालिटी को होल्ड कैसे कर सकते हैं हम, सोचे जरा इस चीज को थोड़ा सा, अपने पेपर पेन ले अपने पास, जरा लिख इसको देखें, इस इक्वालिटी को होल्ड करने का कोई और तरीका है किसी भी तरीके से। सर वो क्रैमर रूल और मैट्रिक इनवर्स मेथड जो थे सर, वो यूज करेंगे। क्रैमर रूल में तो देखें वो 0 0 है दोनों तरफ, तो वो तो 0 0 हो जाएंगे सारा कुछ। सर जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम 0 ले लें सर। फर्स्ट मैट्रिक्स को 0 ले लें, क्यों, किस रूल के तहत। सर दोनों मल्टीप्लायर होते हो, जो लेफ्ट वाली है उसको 0 के इक्वल कर देंगे, अगर वो
A1 और A2 इक्वल जीरो के इक्वल नहीं है तो अच्छा, आप इस तरह कह रहे हैं कि हम इस मैट्रिक्स को जीरो कर नहीं, वैसे मैट्रिक्स में काम नहीं कर सकते। आप तो वो इक्वेशन में काम कर, मैट्रिक्स में। अच्छा, इसका एक तरीका होता है, इसका तरीका ये है, अब आप गौर करें। अगर मैं इसको होल्ड अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा, और से देखिएगा, ये ए एक्स और बी, ये सारा को याद है मैट्रिक या एफ। यस सर। अगर हमें बेसिकली एक्स निकालना है ना, एक्स ही निकालना है जो कि हम एम्पलीट्यूड में इंटरेस्टेड है। ए इनवर्स हो जाएगा उधर। जी, ए इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है। बी। अब ए इनवर्स क्या है? ये इनवर्स क्या होता है? इनवर्स क्या ए होता है? इनवर्स बी हो जाएगा। 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। एडजॉइंट है, ठीक है। यस। अच्छा, अगर मैं इसको, अब देखिए, मैं अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास x हो गया 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। इसे एग्री करते हैं सारे? यस सर। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं वहां ले जाऊं, Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट साइड पे, तो ये होगा x इंटू a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ये समझ आया? यस सर। अब देखें इसका आंसर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अगर b आपके पास 0 0 है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जीरो। 0। अच्छा, अगर हमने लेफ्ट साइड को भी 0 करना है जीरो। तो फिर x को तो 0 नहीं कर सकते, जो वो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो हमें a डिटर्मिनेंट को 0 करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ आया? यस सर। ठीक है। अगर हमने राइट साइड पे 0 है, चूंकि जॉइंट ऑफ a को अगर आप b से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो आंसर आपका 0 ही आएगा सारा। सर ठीक ये है? रिपीट कर दे सर एक बार। ठीक है। इसको आपने लिखना नहीं है पेपर में, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको कह सकता है, अगर आपको डायरेक्ट कहता जी a का डिटर्मिनेंट को 0 ले लो, आप ये कैसे? ये रूल के तहत होता है। रूल ये है कि अगर आपके पास ये स्टेप्स आपको समझ आ गए ऊपर वाले जो मैंने लिखे हैं मल्टीप्लाई करके, ये वाले सारे स्टेप्स, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अच्छा, मैं बताता सर हूँ। ये एक बार रिपीट कर दें सर। हमने किया है कि हमने मेन मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स लिया है, 1 A 2 की मैट्रिक्स को x लिया है और इसको b लिया है। हालांकि वो 0 0 है लेकिन बरल इसको कंसिडर कर लिया। अब हम चाहते हैं कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे इक्वालिटी स्टिल होल्ड रहे लेकिन सॉल्यूशन ट्रिवियल ना हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने लिखा x इक्वल्स टू a इनवर्स b। हम इस a को वहां ले जाए, और आपको मैट्रिक्स में याद होगा कि उसकी पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी है, मुझे एग्जैक्टली भूल गई है, आपको शायद ध्यान में हो कि इट कैन नॉट बी बीइंग a इनवर्स, इट शुड बी a इनवर्स b। तो इसको इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। बहरहाल, तो आपके पास x इक्वल्स टू a इनवर्स b होता है। a इनवर्स बेसिकली a मैट्रिक्स ये पूरी मैट्रिक्स है, ठीक है। a इनवर्स निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या है? 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। किसी को याद है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का? मुझे ऐसा भूल गया हुआ है अभी फिलहाल। सर 2x2 मैट्रिक्स का हम लोग सर पोजीशन चेंज कर देते हैं ए और डी की, और दोनों का साइन चेंज कर देते हैं बी और सी का। इनके सर डायगोनल टर्म्स का साइन चेंज कर देगा तो बिल्कुल उसका ठीक है, पोजीशन ठीक चेंज हो। कर देगा। यस सर। बस ठीक है, याद आ 2x2 मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखिए, अगर आप इस ए इनवर्स को यहां पुट करें इस जगह पे, तो ये आ गया जी x इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ठीक है। अब आपको पता है a डिटर्मिनेंट जो है इट्स अ नंबर, इससे एग्री करते हैं ना सारे? एक नंबर है ना ये। अगर इसको Yes, sir. इससे मल्टीप्लाई कर दे x मैट्रिक्स से, तो ये हो जाएगा x a डिटर्मिनेंट, या आप a डिटर्मिनेंट x कह लें, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। इनकी मैट्रिक्स है दो। आपको पता चूंकि b 0 0 है तो इसका आंसर 0 ही आएगा फॉर श्योर, ठीक है। ये पॉइंट सर को समझ आया? यानी कि चूंकि b 0 है तो इसका Yes, आंसर sir. कभी भी 0 के अलावा नहीं हो सकता। अब लेफ्ट साइड पे 0 करने का, चूंकि हम x को तो 0 नहीं कर सकते, x को 0 करने का मतलब है कि फिर हमने वही ट्रिवियल सॉल्यूशन पे चले गए हैं, ठीक है। a1 a2 0 हो गया। दूसरा तरीका रह जाता है कि अगर हम a डिटर्मिनेंट को 0 कर दें, जो अभी आप उस पहले बात कर रहे थे, अगर हम इस मैट्रिक्स वो इस तरह नहीं हम कर सकते कि इस मैट्रिक्स को 0 कर दें, हम इनफैक्ट इसके डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे।
जब हम उसके डिटर्मिनेंट को जीरो करेंगे तो इक्वालिटी दोनों तरफ होल्ड कर जाएगी। अब समझ आ गए? आपको याद, आप याद ना Yes, करें, sir. आप बस याद रखें बड़ी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट को जीरो करना है। इसके ये आपने करना नहीं पेपर में, ये मैंने आपको वैसे ही बताने का तरीका बताया। ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है इसका, ठीक है, ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम ट्रिवियल में इंटरेस्टेड नहीं है, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या हो गया, माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2 माइनस k2 माइनस k2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर प्लस k2 प्लस k3 डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू। ये अगर हम ये ले लें तो फिर हम इस इक्वालिटी को होल्ड कर सकते हैं, अगर हम ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं लेते तो, ठीक है। ओके, अब गौर करेंगे, जैसे हम इसको जीरो लेंगे, अब नाउ ये इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2 इंटू माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर प्लस k2 प्लस k3 माइनस, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें आपस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी इस डिटर्मिनेंट का होता है, माइनस k2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये सारा कुछ समझ आ गया? Yes, sir. Clear. ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने, चूंकि यहां तक आपके पास इक्वेशन आ गई है, इसको अब हमने सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व इस तरह करना है कि जिस तरह डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं हमें टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप टर्म्स को मल्टीप्लाई शुरू कर दें। इससे पहले मैं एक अजम्पशन लेता हूं थोड़ी ईज के लिए, लेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा। इसका फायदा ये होगा कि आप जो ना 4 पावर से बच जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आपको ओमेगा स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी, उससे बचेंगे। मैं इसको पहले लैम्डा ले रहा हूँ, तो ये बनेगा, ये हमारी अपनी चॉइस है, कोई भी assumption ले लें। हाँ जी कोई भी ले ले, ये लैम्डा लेते हैं, लैम्डा भी रूट होता है इसलिए लैम्डा ले लेते हैं। आप ए बी सी डी कुछ भी ले लें, वो अल्टीमेटली रूट ही होगा इक्वेशन का। मतलब आपको समझ आइए, मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि मैं 4 पावर से बच जाऊं, वो जो पावर 4 आ जाएगी ना ओमेगा की, उससे बच जाऊं। बाद में तो खैर हमने वापस ओमेगा पे ही जाना है। तो इसको मल्टीप्लाई शुरू करें हर टर्म को अलग अलग, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m1 m2 लैम्डा स्क्वायर पहली टर्म को, दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस m1, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, माइनस m1 k2 लैम्डा माइनस m1 k3 लैम्डा, ठीक है। अगर हम सेकंड k1 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस m2 k1 लैम्डा प्लस k1 k2 प्लस k1 k3, ठीक है। और अब हम लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा माइनस m2 k2 लैम्डा प्लस k2 स्क्वायर प्लस k2 k3 इक्वल्स टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, माइनस k2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सॉल्व करके आ गई, ठीक है। सारी टर्म लिख लिए ना? यस, सारी टर्म आ गई। अब देखिए इसमें से ये माइनस k2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसके अलावा कोई चीज कैंसिल होती है? माइनस m2 k2 लैम्डा, मेरा ख्याल नहीं। सो हम क्या करेंगे, हम लैम्डा स्क्वायर की टर्म्स को अलग कर लेंगे, लैम्डा की टर्म्स को अलग कर लेंगे, और जो लैम्डा के बगैर है उन टर्म्स को अलग कर लेंगे। तो आप गौर करें, ये देखें क्या बनेगा, m1 m2 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस ये बनेगी माइनस m1 k2
माइनस M1 K3 माइनस M2 K1 माइनस M2 K2 लैम्डा, और बाकी टर्म हमारे पास क्या रह गई है, प्लस K1 K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि हमने M1 M2 को डिवाइड करना है सारी तरफ। ठीक है, सो कॉल करें तो अगर हम इसको डिवाइड करूंगा M1 M2 को दोनों तरफ, तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर, हर टर्म में M1 M2 डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा K2 ओवर M2, ये बनेगा K3 ओवर M2, ये बनेगा K1 ओवर M1 और ये बनेगा K2 ओवर M। ठीक है, लैम्डा प्लस, इसको आप अगर बाहर लिखना चाहें, हर टर्म से लिखना चाहें हर टर्म के साथ लिख लें, बाहर लिखना चाहें बाहर लिख लें, 1 ओवर M1 M2 K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, आपसे कई बार हो सकता है सिर्फ यहाँ तक पूछें कि आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी इक्वेशन निकालें। ठीक है, तो फिर आप यहाँ तक निकालेंगे, अदरवाइज आपको अगर पूरा कहते हैं फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड शेप्स, तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे ऑनवर्ड। ठीक है, इसको कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, अब आप गौर करें कि अब हमें लैम्डा निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इस पर अप्लाई करना आसान नहीं है, आपको नजर आ रहे काफी बड़ी बड़ी टर्म्स है। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसको सॉल्व करना काफी टाइम लगेगा। तो एक तो मैं आपको पेपर का रूल बता दूं, पेपर में आपको वैल्यूज गिवन होगी K1 K2 की भी, M1 M2 की भी सारी। जनरलाइज फॉर्म नहीं होगी, जनरलाइज फॉर्म सॉल्व करना काफी मुश्किल होता है, काफी लंबी होती है। आपने इक्वेशन, आपने नंबर जो है इसके इस डिटर्मिनेंट के अंदर पुट करना है। मैं आपको ये पक्की बात बता रहा हूँ, गलती ना कीजिएगा। इस डिटर्मिनेंट में आपने वैल्यूज पुट करनी, इससे पहले वैल्यूज पुट नहीं करनी। ठीक है, इन दिस स्टेप सारा कुछ समझ आ गया। आपने इक्वेशन को जनरलाइज सॉल्व करना है, लेकिन जब आपका मैट्रिक्स बन जाएगी, मैट्रिक्स सॉल्व करने से पहले, सॉरी ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से पहले बेशक आप इसके अंदर नंबर्स पुट कर दें। उसका फायदा ये होगा कि मैं चाहता हूं कि आपको जनरलाइज मॉडलिंग का भी आइडिया हो, लेकिन आपके लिए इतना मुश्किल ना हो जाए कि इक्वेशन बनाना, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इक्वेशन बहुत लेंथी हो रही है, इसलिए इक्वेशन बनाना और मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि यहां तक आपने इसको सॉल्व करना है वेरिएबल्स के साथ। जब डिटर्मिनेंट आप बना लेंगे, उसके बाद आपको जो भी M1 M2 की वैल्यूज, K1 K2 K3 की वैल्यूज गिवन होंगी पेपर में, आप उन वैल्यूज को यूज करेंगे और वैल्यूज को यूज करके जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। सर काइंडली ये बता दें, क्विज में भी ये टॉपिक इंक्लूड है ये जो थर्सडे को होना है? नहीं नहीं, ये टॉपिक कहां से आएगा, ये इंक्लूडेड नहीं है टॉपिक। ठीक हो गया पॉइंट? यस सर। ओके, अब मैं अपने लिए एक एग्जाम्पशन ले रहा हूँ जस्ट फॉर ईज, ताकि क्योंकि अब आपको अंदाजा हो रहा है कि इसको मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज किया तो काफी मतलब आसान नहीं है इसको सॉल्व करना, इसीलिए मकसद ये भी नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट हो जाए। मैं अभी एक एग्जाम्पशन ले रहा हूँ इसके अंदर, और एग्जाम्पशन क्या है कि लेट K1 equals to K2 equals to K3 equals to K and M1 equals to M2 equals to M। एग्जाम्पशन मैं ले रहा हूँ सबको समझाने के लिए।
मैं यहाँ वैल्यूज भी कोई भी वैल्यू अज्यूम भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं वैल्यू फिलहाल अज्यूम नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि वैल्यू जब आप पुट करके, मेरे ख्याल है आपको मुश्किल नहीं होगी, वो तो बहुत आसान है, वैल्यूज पुट के आंसर ही निकालना है, वो तो नंबर्स ही आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर मैं ये assumption लूँ तो ये बनेगा माइनस के ओवर एम माइनस के ओवर एम माइनस के ओवर एम माइनस के ओवर एम, ठीक है। और ये बनेगा 1 ओवर एम स्क्वायर, ये बनेगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस 4 के ओवर एम लैम्डा प्लस 3 के स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सारा समझ आ गया? ये assumption लिए मैंने, ये कोई और वैल्यूज जरूरी नहीं बराबर ही हो, लेकिन आप यहाँ तक वेरिएबल में जाएंगे, इधर तक आप नहीं जाना। मैं डिटर्मिनेंट के बाद बेशक आप पुट कर दें, उससे पहले नहीं पुट करनी आपने वैल्यूज। आपको वैल्यूज पेपर में गिवन होंगी, जब न्यूमेरिकल आएगा आपको वैल्यूज गिवन होगी कि ये वैल्यूज है, ठीक है। एनीहाउ, सो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी, ये इक्वेशन आ गई। अब आपने यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक लैम्डा फाइंड कर। लैम्डा होगा तो अगर माइनस बी बेसिकली ये है, सो ये हो जाएगा 4 के ओवर एम प्लस माइनस -4 के ओवर एम होल स्क्वायर -4, ए आपके पास 1 है, सी आपके पास है 3 के स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 के ओवर एम प्लस माइनस, तो पहले टाइम आपके पास बनेगी, ये बनेगी 16 के स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, और दूसरी टर्म बनेगी -12 के स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें गलती नहीं है, ये देख लें, 16 4 से 12, यस, ठीक है। और अगर आप इसको कॉमन लें तो ये बनेगा 4 के ओवर एम, सॉरी 2 भी आ रहा है, हाँ यहाँ पे 2 को भी आप डिवाइड कर दें, 2 प्लस माइनस, अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालूं तो ये बनेगा अंडर रूट, ओके, इसको माइनस करें तो ये रह जाएगा अंडर रूट 4 के स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, जो कि बनेगा 1/2 इंटू 2 के ओवर एम। इस आपको समझ आया? यस सर। स्क्वायर रूट में 4 था, जब स्क्वायर रूट खोला तो के स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर के ओवर एम रह गया, और 4 का स्क्वायर रूट 2 रह गया। इसको अगर आप कैंसिल आउट कर दें 2 और 2 को, तो व्हाट यू गेट इज लैम्डा इक्वल्स टू 4 के ओवर 2m प्लस माइनस के ओवर एम। तो अगर इसको भी आप देख लें तो ये बनेगा 2 के ओवर एम प्लस माइनस के ओवर एम, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद है कि हमने assumption ली थी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा। तो हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज हैं, एक लैम्डा 1 एक लैम्डा 2। आपने याद रखना है जो आपने फर्स्ट वैल्यू लेनी है वो माइनस के साथ लेनी है, ये याद रखना है हमेशा। तो ये होगी 2 के ओवर एम माइनस के ओवर एम, और ये लेनी है 2 के ओवर एम प्लस के ओवर एम। ये पॉइंट समझ आया? सर ये 2K फर्स्ट वाली over हमेशा M, नेगेटिव क्यों लेनी है? इसलिए नहीं कि पहली फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है, कम होती है, दूसरी वाली बड़ी होती है, तो डेफिनेटली जब आप माइनस वाली लेंगे तो आंसर छोटा आएगा, ठीक है।
तो फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम होती है, सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं बेसिकली, ठीक है। अगर सर अगर पहले पॉजिटिव लेने तो गलत हो तो नहीं होगा? नहीं, गलत नहीं होता। ये आप कह लें कि आप जब नेचुरल फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं ना, तो आप सीक्वेंस में चलते हैं, फर्स्ट स्मॉलर, दूसरी उससे लार्जर, थर्ड उससे लार्जर, फोर्थ उससे लार्जर, इस तरह चलते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। गलत हो नहीं सकता, गलत इसलिए हो सकता है, वैल्यू तो आपकी ठीक ही आएगी, लेकिन मैं आपको ट्रेडिशन बता दूं, ट्रेडिशन ये है कि हम स्मॉलर से हायर पे जाते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगी k/m, और ये आपके पास आ जाएगा 3k/m, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो फर्स्ट ω1 होगा, ये होगा √λ1। √λ1 का मतलब है पहली फ्रीक्वेंसी की √k/m, रेडियंस पर सेकेंड, और दूसरी आएगी √3k/m। तो आपके ध्यान में ये स्क्वायर है ना, और मैंने पहली छोटी ली, दूसरी बड़ी ली है, तो ये बनेगी, इसको आप कह सकते हैं, ये होगी 1.732 √k/m। ओके, ठीक है। आपको ये दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आ गई। ये हमारा पहला टास्क था, ठीक है। ये हमारा पहला टास्क था, ये फाइंड करना। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये सिस्टम जो है वो दो जगह पे रेजोनेट कर सकता है। अगर आपकी एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ω1 के बराबर हो जाए तब भी रेजोनेंस हो जाएगी, अगर आपका एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ω2 के बराबर हो जाए तब भी रेजोनेंस हो जाएगी। जितने ज्यादा सिस्टम के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, उतनी ही रेजोनेंसेज होती हैं, उसकी उतने ही चांसेस होते हैं कि सिस्टम रेजोनेट कर देगा। आपको याद था कि जब हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े तो हमने कहा था कि अगर सिंपल उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तभी वो रेजोनेट करेगा। लेकिन मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में ये प्रॉब्लम होता है कि हायर डिग्रीज के अंदर भी क्योंकि नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती हैं, तो नेचुरली आपके पास चांसेस ऑफ रेजोनेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी स्टीम टरबाइन की, कि उसकी इनफाइनाइट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो हम उसको सेकंड और थर्ड के दरमियान में ऑपरेट करते हैं। तो जहां पे आपके पास मल्टीपल रेजोनेंसेस हो, और बहुत सारे सिस्टम में ऐसा होता है, तो शैफ्ट्स हो गई, तो उस केस में हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम का जो ऑपरेशनल रेंज हो वो किसी दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में हो, ताकि आपके पास जो है वो रेजोनेंस से खतरा ना हो। लेकिन चूंकि रेजोनेंस खतरा मौजूद रहता है सिंगल डिग्री फ्रीडम में, तो अगर आपने एक बार रेजोनेंस क्रॉस कर लिया फिर तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो रेजोनेंस आगे आ ही नहीं सकती। लेकिन मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम या हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये प्रॉब्लम होता है कि इवन अगर आप रेजोनेंस क्रॉस कर भी लेते हैं फिर भी अगले रेजोनेंस का खतरा होता है। मिसाल के तौर पर अगर इसमें देखें, तो अगर आप सेकंड ω2 क्रॉस कर लेते हैं तो फिर तो आपका खतरा खत्म हो जाएगा कि अब रेजोनेंस नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप किसी शाफ्ट के अंदर कोई इस तरह कर रहे हैं, तो शाफ्ट की चूंकि इनफाइनाइट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इसलिए उसमें ये खतरा जरूर होता है कि किसी भी पॉइंट पे आगे भी जाके रेजोनेंस आ सकती है। तो उस केस में बड़ा केयरफुली ये फाइंड करते हैं कि इसकी रेजोनेंसेस कहाँ पे आ सकती हैं, और सिस्टम की ऑपरेशन ऐसे करते हैं कि वो कोई भी दो रेजोनेंस के दरमियान में ऑपरेट करे ताकि रेजोनेंस का खतरा ना हो। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ आ गया। इसलिए जो मल्टी फ्रीडम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकालना, कि नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की कितनी है और क्या क्या है वो, ताकि हम इस सिस्टम को रेजोनेंस से बचा सकें। जो दूसरा, ये तो हमारा फर्स्ट टास्क था, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकल आई। दूसरा टास्क है मोड शेप्स। मोड शेप्स, मोड शेप्स निकालने के लिए हमें जो है हम इक्वेशन यूज करेंगे ए वाली। तो आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आप ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, आप ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कोई एक यूज कर, मैं लेफ्ट वाली यूज करता हूँ। आपने एम्पलीट्यूड रेशियो निकालनी है इसमें से। अगर मैं आपको यही निकाल दूं और मैं वहां जाके इसको पुट कर दूंगा, एम्पलीट्यूड रेशियो क्या होगी यहाँ से,
A1/A2 अगर आप रेशो निकालें तो ये बनेगी K2/-M1 प्लस K1 प्लस K2। तो इसी को अगर हम वहां पे लिख दें तो मोड शेप की इक्वेशन आएगी या रेशो की, एम्पलीट्यूड रेशो की, K2/-। तो चूंकि हमने K1 को K लिया हुआ है तो ये बनेगा K/-M⍵² प्लस 2K। सर ये मोड शेप्स का एक बार फिर बता दें सर, थोड़ा मैं बता रहा इंटरफॉर्म हूँ जैसा बनी है। अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तुम्हें बताना है पूरा। आपने जो मोड शेप के लिए पहला काम ये करना है कि ये दो इक्वेशंस जो है जो आपको एम्पलीट्यूड A1 A2 की इक्वेशंस आई है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई एक इक्वेशन ले ले, लेफ्ट वाली ले लें या राइट वाली ले लें। इस इक्वेशन से एम्पलीट्यूड रेशियो निकाल लें, यानी कि A1/A2 निकाल लें। ये पॉइंट समझ आ गया? ये टोटल यस सर। टास्क है आपका, A1/A2 की रेशियो निकालनी, ठीक है। अच्छा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये। अब इस इक्वेशन को देखिए हमने क्या करना है। A1/A2 इक्वल्स टू, मैं दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूँ, K/-M⍵² प्लस 2K। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम ले रहे हैं फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड का ताल्लुक होता है फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। जितने सिस्टम के मोड्स होते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उतने ही सिस्टम के मोड्स होते हैं। मोड क्या चीज होती है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। फर्स्ट मोड होगा फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, ω1 के साथ। सो हम लिख देते हैं A1/A2 और ऊपर लिखते हैं 1। 1 का मतलब होता है फर्स्ट मोड, यानी कि फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। और जहां पे ω² आ रहा होता है वहां पे हम ω1² पुट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाले जो, ये बेसिकली ये ω1² था हमारे पास, ये ω2², तभी इसका अंडर रूट जो है वो ω1 आया था। तो जब ओमेगा फर्स्ट मोड होगा तो हम फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे, जब सेकंड मोड होगा तो हम सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे, ठीक है। तो K/-M और ω1 पुट करना है तो ये होगा K/M। हमने ये वाली वैल्यू पुट किया है 1 वाली, ठीक है, K/M नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्लस 2K। M इससे कैंसिल हो गया। अगर आप गौर करें तो K भी कैंसिल आउट हो जाएगा, K कॉमन आ जाएगा इधर से और K भी कैंसिल आउट हो जाएगा। What you get is 1/-1 plus 2. You get 1/1. ठीक है, इसका मतलब क्या है? 2 मिनट ठहरे मैं आपको बताता हूं। सेकंड मोड, ω2, A1/A2 और यहां पे मैं ब्रैकेट में 2 डाल रहा हूं। इक्वेशन एग्जैक्टली वही है। अब आपने यह करना है कि अब आपने ये पुट करना है, ठीक है, ये ω2² की वैल्यू। तो ये होगा 3K/M प्लस 2। इससे आप M इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2K, K इससे कैंसिल हो जाएगा। You get 1/-3 plus 2. What you get is 1/-1 or -1/1 सेकेंड, ठीक है। ये जो दो चीजें मैं आपको बता दूं, जब मोड शेप हम ड्रॉ करते हैं फिर मैं आपको कुछ भी बताता हूं। मोड शेप का मतलब क्या है? जब सिस्टम रेजोनेट करेगा तो दोनों मैसेज की आपस में रेशो क्या होगी। लेट्स से मैंने ये एजेस ड्रॉ कर दिए, मैं यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर दूं ताकि आपको कॉरेस्पॉन्डेंस का आइडिया हो जाए कि मैं क्या कैसे ड्रॉ करूँ मोड शेप। ये देखें, ये सिस्टम का एजेस हो गए, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो मैं लाइन स्टार्ट करूंगा यहां से। यहां पे आपके पास M1 है, यहां आपके पास M2 है। इस साइड को मैं प्लस कह रहा हूं, इस साइड को मैं माइनस कह रहा हूं, ठीक है। आपके पास जो पहली रेशो है वो 1 की रेशो है, तो मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपके पास आ गया A1,
ठीक है। A2 का भी वही एम्पलीट्यूड है, देखिए A1 का एम्पलीट्यूड 1 है, A2 का एम्पलीट्यूड भी 1 है। ये देखिए, ये आपके पास A2 आ गया और ये आपने लाइन ड्रॉ कर, इसको कहते हैं मोड शेप। इसका मतलब ये होता है कि मैसेज का रिलेटिव एम्पलीट्यूड उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा आपस में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मोड शेप है। ठीक है, सेकंड मोड शेप जब हम ड्रॉ करेंगे, सेम अगर आपने ड्रॉ करेंगे आप ऐसे ही कर लीजिएगा, लाइंस ड्रॉ कर, अंदाजे से भी की जा सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है, गलत नहीं होगी। अच्छा, अब इसकी रेशियो है -1/1। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट मैस ये अगर पॉजिटिव पे था A2 तो ये नेगेटिव में था, तो फर्स्ट मोड शेप बनेगी, सेकंड मोड शेप बनेगी ऐसे। ये आपके पास A1 है और ये आपके पास A2 है। ये है सेकंड मोड शेप। मोड शेप बनती है फ्रीक्वेंसीज के साथ। ठीक है, कि आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी, फर्स्ट रेजोनेंस होगी तो फर्स्ट मोड शेप बनेगी, सेकंड रेजोनेंस पे सेकंड मोड शेप बनेगी। ठीक है, और मोड शेप हमने ऐसे ड्रॉ करनी है। मोड शेप हमेशा एम्पलीट्यूड रेशियो के लिहाज से, जरूरी नहीं 1/1 हो, कोई 0.5/1 भी हो सकती है, कोई 0.7/1 भी हो सकती है, कोई 2.1/1 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है के और एम की वैल्यूज क्या है। अगर आप इसको डिफरेंट करेंगे तो ये रेशियोज में फर्क आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। तो आपने शेप ड्रॉ ऐसे करनी है कि जहां सर पे ये डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पे आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। जी, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, आपने पहले तो मोड शेप की वैल्यूज निकालनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है 1/1 या -1/1 हो, ये वैल्यूज कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, 0.5 और 1 पॉइंट। आपने उसी लिहाज से ये ड्रॉ करनी है। लेट्स से अगर ये वैल्यू आती है 0.7/1, तो आप कैसे मोड शेप ड्रॉ करेंगे? आप मोड शेप ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये देखिए। अब इसको आप कहेंगे ये 0.7 है और ये 1 है। ठीक है, इस तरह मोड शेप बनेगी। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास फर्स्ट रेजोनेंस होगी तो जब ये मैस 1 इंच राइट पे होगा तो ये मैस भी 1 इंच राइट पे होगा, और जब सेकंड रेजोनेंस होगी तो अगर ये मैस 1 इंच लेफ्ट पे होगा तो ये मैस 1 इंच राइट पे होगा। ये सेकंड रेजोनेंस है। ठीक है, देखिए आउट ऑफ फेज है, एक 1/1 है, यानी कि +1/1, एक राइट साइड पे 1 है, दूसरा भी राइट साइड पे 1 है। ये इस तरह है, लेकिन दोनों का आपस का साइन है। अगर एक M1 लेफ्ट पे, दोनों दूसरा भी M1 लेफ्ट पे है। लेकिन जब सेकंड रेजोनेंस होगी, इसे कहते हैं फर्स्ट रेजोनेंस को इन फेज। इन फेज का मतलब है अगर पहला राइट साइड मूव कर रहा है, दूसरा भी राइट साइड में मूव कर रहा है मैस। ठीक है, इसको इन फेज वाइब्रेशन कहते हैं। तो फर्स्ट मोड में हमेशा इन फेज वाइब्रेशन होगी। ठीक है, जो सेकंड मोड होगा उसमें एक मैस लेफ्ट पे होगा, दूसरा राइट पे होगा। अगर एक राइट पे होगा, दूसरा लेफ्ट पे होगा, इसे कहते हैं आउट ऑफ फेज, यानी कि दोनों मैसेज की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी मूव करने की, लेकिन रेशियो एक ही होगी। अगर एक 1 इंच लेफ्ट पे मूव करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और दूसरा एट द सेम टाइम 1 इंच राइट पे होगा। इसी तरह वन मैस M1 जो 1 इंच राइट पे होगा, दूसरा मैस एट द सेम टाइम 1 इंच लेफ्ट पे होगा। तो ये एक्सक्यूज मी आउट ऑफ सर, जी। सर जो आउट ऑफ फेज वाइब्रेशन है सर, इसमें देखें एक मैस ऑपोजिट राइट साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा सर, इनकी फ्रीक्वेंसीज को ओवरलैप करके कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए सर? नहीं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही होगी वाइब्रेशन की, दोनों मैसेज एक ही फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेंगे, वो √3 k/m है। ठीक है, सर वही मैं कह रहा हूँ कि सेम फ्रीक्वेंसी से भी वाइब्रेट करे लेकिन डायरेक्शन तो ऑपोजिट है सर, तो फिर इनको कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए सर? कैंसिल आउट किस तरह आप कह रहे हैं कि देखिए दरम्यान तो स्प्रिंग है ना, साइड पर स्प्रिंग्स हैं, वो कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं? एक चीज राइट साइड पे मूव कर रही है, एक चीज लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है, कैंसिल आउट कैसे करेंगे वो? आप उसका आप ले रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन। जब आपका सिस्टम रेजोनेट कर रहा होता है तो फिर उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते आप, बहुत मुश्किल है। ये तो मैं आपको रेजोनेंस की बता रहा हूँ ना। जब सिस्टम रेजोनेट करेगा तो दोनों लेफ्ट राइट का मतलब ये नहीं कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो बराबर तो कैंसिल कर देंगे आपस में, ऐसे वाइब्रेशन में नहीं होता। वाइब्रेशन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर एक प्लस में जा रहा है एक नेगेटिव में जा रहा है तो वाइब्रेशन, हाँ वाइब्रेशन किसी और सिस्टम में हो रही है, ये तो एक सिस्टम कनेक्टेड है आपस में, इसलिए इसमें कैंसिल आउट का कोई चांस नहीं बनता। आप इसको साइन के साथ ना लेंगे, साइन ऑपोजिट हो गया, ये एम्पलीट्यूड के साइन है, फ्रीक्वेंसी इसकी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट नहीं कर सकती इसको। हाँ, ये हो सकता है कि आप दरमियान स्प्रिंग को निकाल दें और वहां रॉड लगा दें, फिर ये वाइब्रेट नहीं करने देगा उसको।
जिस तरह आपके इन फेज तो वाइब्रेट कर लेगा वो। जिस तरह आपने देखा, अगर हम दरम्यान में रॉड लगा दें यहाँ पे और स्प्रिंग खत्म कर दें, यानी कि बहुत हाई स्टिफनेस रॉड लगा दें, तो ये वाली वाइब्रेशन तो होगी क्योंकि ये इन फेज है, लेकिन वो आउट ऑफ फेज को रोक लेगा, वो कैंसिल कर देगा, क्योंकि यहाँ दरम्यान में उसको मूवमेंट की फ्रीडम नहीं है। जब आपने उसको सेंटर में मूवमेंट की फ्रीडम दे दी है, फिर आप उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। राइट सर। वो वाइब्रेट करेगा करेगा और इसी फ्रीक्वेंसी से करेगा। ये पॉइंट सारा समझ आ गए? तो ये हमारा सेकंड, ये हमें ड्रॉ भी करनी है। मैं आपको एक और केस अपलोड करूंगा, मैं आपको कुछ 2-3 केसेस कोशिश करूंगा कि सैंपल अपलोड कर दूं सॉल्यूशंस के साथ। एक में मैंने एक को m लिया हुआ है, एक को 2m लिया हुआ है और k बराबर है। एक मैं ये केस अपलोड कर दूंगा, एक मैथ m है और एक 2m है। इसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है एम्पलीट्यूड्स में, ठीक है, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कैसे करना है। 1-2 केसेस मैं और अपलोड कर दूंगा जो मैंने एग्जाम में दिए हुए थे, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो जाए कि हम जो है वो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके। 2 रूल्स हैं इसके अंदर, 2 निशानियां कह रहे, 2 इंडिकेशंस कह रहे हैं। एक, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगी, इट विल बी नेवर बी नेगेटिव। ये बात में ज़हन में रखिएगा, दोनों नेचुरल फ्रीक्वेंसीज में से कोई एक भी नेगेटिव नहीं आएगी। अगर आपके पास कोई एक नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है आपने सोल्यूशन में गलती की है कहीं पे, और ये आती है साइंस की वजह से। अगर साइंस आपने गलत गलत कर दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती एट एनी कॉस्ट, 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज में। और दूसरा, जब आप मोड शेप निकालेंगे, अगर आप वैल्यू ना भी पुट करें तब भी ये नंबर की फॉर्म में आएगी। यदि आपने गौर किया, मैंने के और एम की कोई वैल्यू पुट नहीं की, मतलब के और एम को जनरलाइज, लेकिन के और एम कैंसिल हो गए आपस में, आखिर में नंबर रह गया। ये भी एक निशानी है। अब तो आप जब वैल्यूज पुट कर देंगे तब तो डेफिनेटली वो नंबर्स में ही आ जाएंगे। नॉर्मली पहला मोड जो है उसमें दोनों वैल्यूज प्लस होंगी और सेकंड मोड में एक प्लस होगी एक माइनस होगी, यानी कि पहली मोड में इन फेज वाइब्रेशन होगी, दूसरे मोड में आउट ऑफ फेज वाइब्रेशन होगी। सर ये किसी भी सिस्टम में यही होता है कि सेकंड मोड जो होता है वो आउट ऑफ फेज वाइब्रेट करता है या सिर्फ इसी सिस्टम में सर? नॉर्मली ऐसा ही होता है, आउट ऑफ फेज ही वाइब्रेशन होती है कि 2 मैसेज हो। एम्पलीट्यूड में फर्क हो सकता है, एम्पलीट्यूड्स के जो होते हैं वो डिपेंड करता है के और एम की वैल्यूज पे। क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यूज बराबर ली थी इसलिए 1/1 की रेशो आ रही है। मैं ये बराबर ना लूँ तो ये रेशो 1/1 के बराबर नहीं आएगी, ये थोड़ी डिफरेंट आएंगी। जैसे मैंने आपको बताया, मैं केस अपलोड करूंगा जहाँ पे एक m है और एक 2m है, डबल मैथ है, तो उस सूरत में जो आपको की रेशोज आएंगी ये थोड़ी फर्क आती है कि एक रेशो शायद 0.7/1 आती है, दूसरी शायद -2.3/1 आती है, लाइक दैट। तो इसमें तो फर्क हो सकता है, लेकिन ये जरूर होगा कि पहली जो वाइब्रेशन है वो इन फेज होगी, यानी कि दोनों मैसेज एक तरफ वाइब्रेट कर रहे होंगे और दूसरे में आउट ऑफ फेज होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी कोई वीडियो अपलोड कर दूं, जब मैं आपको लेक्चर आपको बाद में अपलोड करूंगा तो मैं कोई वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप इसको विजुअलाइज भी कर लीजिएगा कि इन फेज वाइब्रेशन कैसी होती है और आउट ऑफ फेज वाइब्रेशन कैसी होती है। सर एक और चीज सर, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ड्रॉ करने होंगे सर? जी करने होंगे। आप इसको बेशक नीट ना करें, रफ कर लें। अब देखिए, मैंने इसलिए आपको नहीं कहा कि आप रूलर लेके स्केल पे ड्रॉ नहीं करने। स्केल का मतलब है कि ये ना करें कि वो अपने 1 सेंटीमीटर को 1, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि मोड शेप ड्रॉ कैसे करते हैं। आप बेशक इसको रफ ड्रॉ करेंगे, मतलब आप रखें, हाँ ये जरूर है। जैसे अब 1-1 जैसे लिया ना, तो यहाँ पे देखिए 1-1 ये स्ट्रेट लाइन ही होगी ना, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन ही होगी। अब इसको आप टेढ़ा तो नहीं कर सकते, तो आपने अंदाजे से ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्केल रख के ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको ड्रॉ करने में, ये तो बहुत छोटा सा काम है। स्केल नहीं लीजिएगा, स्केल लेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, स्केल के बगैर ड्रॉ करनी है। तो आपको पेपर में क्या आएगा, आपको सिस्टम ऐसे दिया होगा, फॉर डिटरमिन द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज एंड मोड शेप ऑफ द फॉलोइंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। आपके सिस्टम में ये ड्रॉ हुआ होगा, वैल्यूज दी होंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने डिटर्मिनेंट तक वैल्यूज पुट नहीं करनी, जहां तक आपको डिटर्मिन यहां तक आपने वैल्यूज पुट नहीं करनी। जब आपका डिटर्मिनेंट आप लिख लें तब आप इसमें वैल्यूज पुट करके, बेशक मल्टीप्लाई करने से पहले इसमें वैल्यूज पुट कर लें और फिर इसको सॉल्व करें। किसी ने पहले की तो मैं उसके नंबर काटूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मॉडलिंग भी वैल्यूज के साथ ही करें, मॉडलिंग आपने जनरलाइज ही करनी है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स गौर से सुन लें। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, सारे सिस्टम्स को यही तरीका होता है सॉल्व करने का, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ नंबर इक्वेशंस का बनाने में फर्क है, और वो इक्वेशन मैं आपको जल्दी जल्दी तीनों बता रहा हूं, वो जरा गौर से सुन लें।
एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी प्लीज पूछें। सर ये जो मोड का मतलब फिजिकली मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन को ये शो कर रहे हैं कि M1 और M2 की डायरेक्शन में क्या फर्क है? हाँ, मोड का मतलब होता है कि जब आपके पास एक मैच है फिर तो आपको पता है कि उसका रिलेटिव तो जीरो के साथ ही होता है। ठीक है, अगर आपका एक मैच है तो वो आपको मीन पोजीशन से मेजर करेंगे ना उसको, कि ये जीरो मीन से 1 इंच मूव लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। जब दो मैसेज होते हैं ना, इसलिए हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में मोड शेप की बात नहीं की, क्योंकि वहां बात बनती भी नहीं थी करने वाली। ठीक है, जब 2 और 3 और हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं फिर हम दो मैसेज का आपस में रिलेटिव एम्पलीट्यूड लेते हैं। ये अगर एक लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है, दूसरा राइट पे कितना मूव करेगा, अगर एक राइट में मूव करे दूसरा लेफ्ट पे कितना मूव करेगा। और इसकी वजह होती है, इसकी वजह ये होती है कि अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल मैसेज हैं तो आप उनके एम्पलीट्यूड देखते हैं कि ये ना हो किसी का एम्पलीट्यूड इतना बढ़ जाए कि वो सिस्टम की जो लेट से स्प्रिंग है, स्प्रिंग की जो है वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना एम्पलीट्यूड हो कि वो क्रॉस करके ब्रेक कर दे। तो हम एम्पलीट्यूड रेशियो इसलिए निकालते हैं कि हमें पता हो कि आपस में कितना किस रेशियो से मूव करेंगे। और आपको फील हो रहा है ज्यादा है तो आप सिस्टम को मतलब एडजस्ट करके उसके मैथ और स्टिफनेस को एडजस्ट करके भी इन रेशियोज को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप, जैसे मैंने आपको केस बताया है कि अभी ये तो 1/1 की रेशियो है फर्स्ट मोड में, अगर यहाँ पे एम अगर सेकेंड मैच हो वो 2m हो तो ये 0.7/1 हो जाता है, यानी ये पहले मैच की जो रेशियो है वो 0.7 हो जाती है। तो ये इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि असल मकसद है कि आपस में इनकी उस मोड के ऊपर या उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे मैसेज का आपस में रिलेटिव एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये दो मकसद होते हैं। यस सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा ये होगी ट्रांसलेशन सिस्टम के लिए। इसमें आपने ये परेशान नहीं होना कि इसमें स्प्रिंग ज्यादा भी हो सकते हैं। लेट्स से इसमें जो है वो यहाँ पे एक और स्प्रिंग भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ नंबर इक्वेशन की, अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से K4 है, ये K5 है, ये K6 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म ऐड होगी यानी कि -K4 x1 और वो ऑटोमेटिकली x1 के अंदर ही जम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ना परेशान होगी कि स्प्रिंग स्प्रिंग 50 भी लगे हो सकते हैं, मैसेज आपने देखने हैं वो कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मैसेज की इक्वेशन लिख सकते हैं। सर ये अगर स्प्रिंग और सीरीज में लग जाए फिर ये तो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे ना इस हाँ, तरह। अगर आपके पास सीरीज स्प्रिंग इस तरह, आप इस तरह कह रहे हैं, यस सर। तो फिर आप इनका इक्विवेलेंट निकाल के, आप बेशक इसको इस तरह सॉल्व ना करें, आप इनका इक्विवेलेंट निकाल के ना सिस्टम को रिड्यूस कर दें एक सिंगल स्प्रिंग में। हो रहा है, आप इसका ठीक है इक्विवेलेंट सर। निकालें, लेट्स से ये है K1 K2, उसका इक्विवेलेंट बनेगा मतलब अगर आप यहाँ पे आपको आप फिलहाल इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये क्या बनेगा K1 K2 और K1 + K2। यस सर। आपका इक्विवेलेंट आप वो यहाँ पे लिख दें, यानी कि इसको आप K इक्विवेलेंट कह दें, इक्विवेलेंट 1 कह दें। यही अगर हम ऊपर उसको भी तो इक्विवेलेंट कर सकते हैं ना, जो ऊपर हाँ वाला कर तो। सकते हैं, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक ही बात है ना, मैंने आपको यही तो कहा कि क्यों जम करने के लिए कह रहा हूँ। आप इसको भी इक्विवेलेंट कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात की है इन्होंने। अगर दो स्प्रिंग हो तो आप इसको जो है वो इक्विवेलेंट, आपके इक्विवेलेंट 1 कह सकते हैं, के इक्विवेलेंट 2 कह सकते हैं, ऐसा सो कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो वो जो के आप इक्विवेलेंट 1 लिखेंगे वो K1 और K4 का कॉम्बिनेशन ही होगा ना, तो कर सकते हैं बिल्कुल। वैसे कर लें, इक्विवेलेंट कर लें, उसको भी इक्विवेलेंट कर लें, अलग लिखना चाहे अलग लिख लें, इसमें भी अलग लिखना चाहे अलग लिख लें। लेकिन इसमें अलग लिखना मुश्किल होगा क्योंकि ये सीरीज में है, वो पैरेलल में है तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी। लेकिन इसमें लिखना मुश्किल होता है, लेकिन उसमें भी करेंगे तो दैट विल बी मोर गुड, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैसेज ज्यादा नहीं होंगे। अगर मैसेज ज्यादा हो गए तो फिर डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर 3 डिग्री फ्रीडम बनेगा और वो बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। आपको अंदाजा होगा कि मैं 3 डिग्री फ्रीडम बनाऊं तो क्या फर्क होगा, किसी को आइडिया है सिस्टम में क्या फर्क आएगा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर 3 हो जाएगी, तीन मोड होंगी, भी 3 कर देंगे। मोड भी 3 बनेंगे उसके। और 3 सर हमारे पास मैट्रिक्स जो बनेगी वो 3x3 की हो जाएगी। हाँ, और आपको अंदाजा कि 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? बस सर। ठीक है, इसीलिए मैंने वो उसने नहीं दिया क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स 3x3 की सॉल्व करनी पड़ेगी, और 3x3 की मैट्रिक्स सॉल्व करने का बहुत लंबा स्टेप होता है, आपको पता है, आपने की होंगी। तो इसलिए मैंने इसको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्ट किया, और उसकी मोड शेप निकालने के लिए, उसकी मोड शेप तो और आसान होती है, उसकी मोड शेप निकालने के आधा पौना घंटा लग जाता है, उसकी मोड शेप की एक्सक्यूज मी कुछ। सर, जी
सर जो हम फिजिकल सिस्टम्स को सर हम जब बनाते हैं तो सर उसमें हम कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं सर, 1 2 या 3? सिस्टम को पहले स्टडी करना पड़ता है कि सिस्टम की अपनी शेप क्या है। जिस तरह मैं आपको भी जो हम इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम शायद इनहेरिटेडली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता। ठीक है, इस सिस्टम को हम खुद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाते हैं टाइम्स, और फिर उसके और वो क्यों बनाते हैं उसका कोई पर्पज होता है। सम टाइम वो खुद भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, सम टाइम हम खुद बनाते भी हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दोनों सूरतों में जो हमारा पर्पज होता है वो ये होता है कि आपका सिस्टम डैमेज ना हो। प्रैक्टिकली सिस्टम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और एक्चुअल वाइब्रेशन सिस्टम जो होते हैं वो इनफाइनाइट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। ठीक है, उन्हें नॉर्मली कहते हैं कॉन्टिन्यूस सिस्टम्स। वो सिस्टम जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बताया आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये जो कॉन्टिन्यूस सिस्टम्स है वो काफी डिफिकल्ट होता है उनको सॉल्व करना। ये मैथ्स जो आप M1 ले रहे हैं ये रिजिड मैथ्स है। अगर मैं इस मैथ्स को डिफॉर्म करना शुरू कर दूं ना कि ये वाइब्रेशन में डिफॉर्म हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट होगी, या डिफिकल्ट क्या आप समझिए ये पीडी होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। पॉइंट समझ आया? लेकिन अगर मैं इस मैथ्स को डिफॉर्म कर दूं जो कि एक्चुअली में होता है, मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको लास्ट टाइम मिसाल दी थी कि अगर आपके पास एक शैफ्ट है और वो बेरिंग्स के दरमियान सपोर्टेड है, इस शैफ्ट के अंदर ही स्टिफनेस है, इस शैफ्ट के अंदर ही मैस है, यानी किसी को मैस, जैसे इस केस में तो मैस और स्टिफनेस आप अलग कर सकते हैं ना, आपको पता है ये स्टिफनेस है ये मैस है। शैफ्ट के केस में अलग करना पॉसिबल नहीं है, उसी शैफ्ट में मैस है, उसी शैफ्ट में स्टिफनेस है। इसका मतलब है कि उसका मैस क्यों स्टिफनेस है, उसका मैस डिफॉर्म कर सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ये ओडी से सॉल्व नहीं होता। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मैंने एक चीज पूछनी है, ये K1 ये तो स्प्रिंग का होता है स्टिफनेस, तो ये शाफ्ट है फिर? तो शाफ्ट की स्टिफनेस नहीं होती, इट्स लाइक अ बीम है ना, ये बीम है। कोई लेट्स से अगर ये नॉर्मली बेरिंग से जो बीम होता है इसको हम फिक्स्ड बीम लेते हैं। मैं इसलिए अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, शाफ्ट की डिटेल में ना। चलो ठीक है, थैंक यू। का कोई के होता है पता नहीं क्या 48 EI/L क्यूब होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, या 5 EI कुछ इस तरह से होता है, समथिंग लाइक दैट। उसका के तो होता है क्योंकि उसके अंदर स्टिफनेस होती है, उसमें मैस भी होता है क्योंकि उसका कोई ना कोई मैस तो होगा शाफ्ट का। अब चूंकि उसका मैस के अंदर ही स्टिफनेस होती है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आसान तरीका आइडेंटिफाई करने का क्या जो मैंने आपको बताया, अगर आप स्टिफनेस को आइडेंटिफाई ना कर सके सेपरेटली, स्टिफनेस को अलग से लगी हुई है, तो सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है या कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता है, लाइक शाफ्ट्स है या एयरक्राफ्ट विंग्स है, और उस सूरत में फिर सिस्टम को पीडी से सॉल्व करना पड़ता है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो सिर्फ सुनने की गर्ज से कि आपको पता लग जाए कि सिस्टम को सॉल्व करते कैसे, सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, तो प्रोबेबली जनवरी 10 जनवरी या उससे नेक्स्ट वीक में MS में मेरा लेक्चर है रिगार्डिंग दी कॉन्टिन्यू मॉडलिंग ऑफ दी कॉन्टिन्यूस सिस्टम। उनको मैं पढ़ाऊंगा जरूर क्योंकि उनका तो काम है ये, वो MS लेवल है। वहां पे आपको ज्वाइन करना चाहे जरूर कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा सिर्फ एक गेस्ट लेने के लिए या इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए कि एक शाफ्ट सिस्टम को या कॉन्टिन्यूस सिस्टम को मॉडल करने में कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है। तो आप खुद अंदाजा हो जाएगा कि लोग इस सब्जेक्ट से क्यों भागते हैं, क्योंकि एक्चुअली में सिस्टम अगर आप देखें ना, अगर आप किसी ज्यादातर हम सॉल्व करते हैं जो वाइब्रेशन आती हैं रियल सिनेरियोज में, लाइक जिस तरह मैं थीसिस किया PhD का, दैट इज रिगार्डिंग द वाइब्रेशन ऑफ द हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स। हीट एक्सचेंजर ट्यूब जो है वो भी मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम है और उसको सॉल्व करना भी उतना ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने उसको रिड्यूस किया 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। वो उसकी पूरी टेक्निक है कि हम कैसे करते हैं उसको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। अगर मैं भी उसको करता तो शायद मेरे से हैंडल ना होती है कोई। तो ये भी होता है कि हम हर दफा मल्टी डिग्री को भी सॉल्व करते हैं, हम उसको सिंगल डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या कोई तरीका आता होगा उसको कन्वर्ट करना कैसे। ठीक है, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन, खैर वो आपके बैचलर्स लेवल का काम है नहीं, क्योंकि ज्यादातर वो रिसर्च में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कि जब हम सिस्टम को प्रैक्टिकल सिस्टम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ज्यादातर जो आपके जो कोर्स का हिस्सा है इसमें जनरलाइज सिस्टम्स हैं, इसीलिए मुश्किल मॉडलिंग में ही मुश्किल होती है कि जब आप एक्चुअल सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता, इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट। ठीक है, लेकिन मैं आपको ओपन दावत दे रहा हूं, आप आना चाहें जरूर आ जाएं, आप जरूर
उसमें शामिल हो जाएं, जिनको शौक हो। सिर्फ चूंकि आपके कोर्स का ऐसा तो है नहीं, आपको सिर्फ अंदाजा हो जाएगा कि सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है, और चूंकि उसकी इनफाइनाइट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बनती है, इनफाइनाइट मोड शेप बनती है, तो हम कितनी मोड शेप निकालते हैं और कैसे मोड शेप इक्वेशन तक पहुंचते हैं या उस इक्वेशन तक पहुंचते हैं, वो काफी एक हैटिक जॉब है। एनीहाउ, जो हमारा सेकंड सिस्टम है वो है रोटेशनल सिस्टम। मैं आपको सिर्फ इसकी इक्वेशन बता रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आपको मेरा ख्याल है, उम्मीद है अब आप खुद ही कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा। रोटेशनल सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके पास टॉर्शनल वाइब्रेशन सिस्टम है, ठीक है, आपके पास इट्स अ काइंड ऑफ, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्क शाफ्ट सिस्टम। आपको गियर्स कह लें, आप गियर्स में वाइब्रेशन होती है, या आपके पास क्रैंक शाफ्ट में, कैम शाफ्ट में वाइब्रेशन होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये दिस इज J1 J2, इन दोनों डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस तरह शैफ्ट लगी होती हैं। ये शैफ्ट जो है इनकी इन शैफ्ट की जो है वो टॉर्शनल स्टिफनेस होती है। तो अगर मैं इसको कह दूं KT1, इसको मैं कह दूं KT2, इसको मैं कह दूं KT3, KT रिप्रेजेंट करता है टॉर्शनल स्टिफनेस, ठीक है। अगर टॉर्शनल स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करना चाहें तो दैट इज इक्वल्स टू टॉर्क पर थीटा, ठीक है। अच्छा, ये सिस्टम है, इसमें दो भी हो सकती है। अगर मैं इसमें भी आपको मैथ्स देखना पड़ता है कितने डिस्क हैं, अगर एक डिस्क है तो सिंगल डिजिट फ्रीडम है, 2 डिस्क है 2 और 3 है तो 3। इसमें ये भी हो सकता है कि ये वाली डिस्क, ये वाला शाफ्ट ना हो, 2 ही डिस्क हो। आप कंसीडर कर सकते हैं इसको ओवरहैंग पुली के साथ या गियर्स के साथ, गियर्स के शाफ्ट से लगे होते हैं, ये उस सिस्टम में इस्तेमाल होती है, वाइब्रेशन में होती है, टॉर्शनल वाइब्रेशन। इसको लिखने का तरीका वही है, क्योंकि रोटेशनल सिस्टम है। अगर मैं इसको एक डिफ्लेक्शन दूं राइट साइड पे θ1, और इसको या इसको ऐसे θ1 कह लें और इसको θ2 कह लें, इसी इक्वेशन बनेगी J1 θ1 डबल डॉट, और ये वही तरीका है, उसमें भी वही तरीका इस्तेमाल होता है जो मैं आपको तरीका मैंने बताया, वो है माइनस KT1 θ1, यानी कि KT1 ये स्टिफनेस और इसकी जो डिफ्लेक्शन उतनी होगी जितनी इस डिस्क की डिफ्लेक्शन है, वो θ1 है, माइनस अब ये K2 लगा हुआ है, K2 में दोनों डिस्क हैं, तो KT2 इंटू θ1 माइनस θ2, ठीक है। थीटा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो टॉर्क होता है ये KT बराबर होता है न्यूटन मीटर पर रेडियन, तो थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर, और ये मोमेंट होता है या टॉर्क होता है, और ये बेसिकली टॉर्क की इक्वेशंस होती हैं, क्योंकि ये रोटेशनल सिस्टम है। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आ गई J2 θ2 डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस KT3 θ2, ये वाली जो शाफ्ट है आपके पास, माइनस KT2 θ2 माइनस θ1। ये वो तरीका जो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना चाहें तो वो इसी तरह बनेगी कि ये θ1 इस डायरेक्शन में है तो KT1 इस डायरेक्शन में होगा ऑपोजिट, तो माइनस के साथ आएगा। इसी तरह यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा और उस साइड पे जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसमें भी जो है अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में होगा। तो आप गौर करें तो वही एग्जैक्टली वही तरीका है, तो टॉर्क हो रही है, टॉर्जन हो रही है दरमियान में, तो इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी। तो आप अगर वैसे लिखना चाहे फ्री बॉडी डायग्राम से वैसे लिख लें। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको डिस्क ड्रॉ कर दूं तो आपको शायद अंदाजा हो जाए, ये एक डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है, तो यहाँ पे आपके पास अगर इसका जो थीटा है वो इस डायरेक्शन में है और इसका भी थीटा इस डायरेक्शन में है, तो आपके पास जो पहला मोमेंट जो काउंटर जो बनेगा, जो रिएक्शन फोर्स बनेगी वो एक डायरेक्शन बनेगी। दरमियान वाली शाफ्ट है, डेफिनेटली एक की डायरेक्शन इस साइड पे होगी, और दूसरा चूंकि दूसरी तरफ हो रहा है तो दूसरी की डायरेक्शन इस साइड पे होगी, ठीक है, और तीसरी की डायरेक्शन भी इस साइड पे होगी, चूंकि वो भी इस तरफ राइट साइड मूव कर रहा है तो उसको लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी तरह अगर आप लिखें उसी तरीके से, तो जिस डायरेक्शन में जिस डबल डॉट है उस डायरेक्शन को, जिस तरह यहाँ क्लॉकवाइज है तो आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, और उसको उल्टे को नेगेटिव लेना है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये जो बराबर होगी ये होगी KT2 इंटू θ1 माइनस θ2, वही एग्जैक्टली वही तरीका, वो यूज करने फ्री बॉडी डायग्राम यूज करने, या आप जो मैंने आपको तरीका बताया कि पहली बात कि सारी जो फोर्सेस होंगी स्प्रिंग फोर्सेस, टॉर्शनल स्प्रिंग फोर्सेस वो नेगेटिव होंगी, और दूसरा जिस मैथ की आप इक्वेशन लिख रहे होंगे उसको उसकी मोशन को डोमिनेंट कंसीडर करना है। ये मुझे लगता है ज्यादा आसान है, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपकी मर्जी, आप वो यूज करें या ये यूज करें। आगे तरीका इसका एग्जैक्टली वही है जिस हमने पहले केस की भी मोड शेप बनेगी वैसी ही बनेगी।
इसका थीटा 1 जो है इस जो आपके जो इसके सोल्यूशन आप अज्यूम करेंगे वो आप अज्यूम करेंगे थीटा 1 इक्वल्स टू, आप कोई भी थीटा नॉट 1 कह सकते हैं, या इसको भी आप A1 कह सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप A1 साइन ओमेगा टी कह सकते हैं। A1 मतलब अगर आपको ये लीनियर नहीं है, ये बेसिकली इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एम्पलीट्यूड होता है, तो आप इसको बेशक कुछ भी और भी कह लें, बेशक थीटा नॉट प्राइम कह लें, और इसको थीटा 2 को थीटा नॉट डबल प्राइम कह लें, या कोई भी टर्म दे दें, ये एम्पलीट्यूड है बेसिकली, और उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये सारा कुछ समझ आ गया? यस नो सर। सर। क्या हुआ? ये सर ये बात रिपीट कर दें। मैं रिपीट क्या, कौन आखिरी वाली बात या शुरू? इक्वेशन समझ आ गई कैसे बनानी है? यस सर इक्वेशन समझ आ गई, उसके बाद ये थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा, ये आपने रिपीट कर दें। आपने सारे सोल्यूशन आपने डायरेक्शन सोल्यूशन डायरेक्शन किस तरह आ रही है? डायरेक्शंस कैसे आ रही है? ये मैं सर बता डायरेक्शन मैं बताता हूँ। इसलिए वही तरीका है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप गौर करें कि जब आप इसको यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे राइट साइड पे, इस डिस्क को, डिस्क नंबर 1 को, तो देखिए इसमें टॉर्जन प्रोड्यूस होगी उस डायरेक्शन में, तो ये एक काउंटर टॉर्जन जनरेट करेगा इक्वल्स टू KT1 टाइम्स थीटा, ठीक है, काउंटर टॉर्क कह ले प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से ये डिस्क यहां मूव करेगी तो आपके पास सेम इस शाफ्ट में वही होगा। अब चूंकि ये भी थोड़ा इसको मजबूर करेगी ये डिस्क इसको यहां मूव करने पे, तो इसने चूंकि वापस मीन पोजीशन में जाना है तो इसको इसका रिएक्शन टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, जिस तरह हमने अभी मैसेज में किया था। कौन समझ आया? क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, इसका काउंटर टॉर्क इस डायरेक्शन में है और इसका उस डायरेक्शन में है, ताकि इसको वापस लेके जाए अपनी मीन पोजीशन पे, ठीक है। चूंकि ये इस तरफ आ रहा होगा, इसके काउंटर टॉर्क जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो जो कि आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये कोई अगर आप इसके मुताबिक लिखेंगे तो ये बनेगी J1 थीटा 1 डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस KT1 थीटा 1। सर जो थीटा 2 हमारे पास डिस्क है, उसके जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बना हुआ है एरो, वो तो एरो हेड हमारे पास थीटा 2 की डायरेक्शन में ही नहीं जा रहा। ये वाला आप कह रहे हैं? यस सर। हाँ तो ये जाएगा ना। तो सर थीटा 2 से तो इसको ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिस्टोरिंग उसकी रेजिस्टेंस है ना, उसका रिस्टोरिंग है ये वाला पोर्शन। देखिए वो दूसरी तरफ भी रेजिस्ट कर रहा है ना। प्रॉब्लम अब ये है कि यहाँ से टॉर्जन प्रोड्यूस हुई, वो राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है। यस सर। अब राइट साइड पे जा रहा है तो वो डिस्क को भी राइट साइड पे लेके जाएगा अगली वाली। तो वो पिछले वाले को रेजिस्ट कर रहा है बेसिकली, जो पीछे हमारे पास थीटा 1 के का जो रिएक्शन है वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। थीटा 1 की रिएक्शन को रेजिस्ट कर रहा है, सही हो। लेकिन अगर आपने उसको अगर आपको रिस्टोर करना है तो ये भी ये इसको उल्टा रेजिस्ट करेगा, तो इसको काउंटर ये इसका काउंटर इसको ये करना पड़ेगा। यस सर। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस डायरेक्शन में ना जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो मैंने आपको तरीका बताया ना उससे लिख लें कि आपने क्या करना है, सारी फोर्सेस नेगेटिव और जिसकी लेंगे उसको डोमिनेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है सर। तो अगर आप इसको इस तरह लिखें ना तो वो देखें वही वाली बात बनेगी। ये देखें ये प्लस में हो जाएगी और ये माइनस में होगी, तो वही प्लस में आप वो ले जाएंगे तो वो भी माइनस हो जाएगी, बात है वही हो जाएगी, ठीक है। इसलिए डायरेक्शंस को मैं तो ये कहूंगा रहने ही दे तो बेहतर है, क्योंकि फिर आपको डायरेक्शन में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा इसके अंदर अगर मैं लास्ट रॉड निकाल दूं ये वाला, तो फिर आपके पास ये वाली फोर्स 0 हो जाएगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो इस दो वाले में 2 टर्म्स होंगी और इस वाले में सिर्फ 1 टर्म होगी, तो डेफिनेटली इसकी 1 टर्म 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है। ये टॉर्शनल सिस्टम होते हैं, इससे आपको इक्वेशन में कंफ्यूज नहीं करना है। इक्वेशंस जो है वो ये इसी इक्वेशंस डिफरेंस होती है, बाकी कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। ओके थीटा मैंने ये सोल्यूशन एज्यूम किए हैं। सोल्यूशन आप देखिए, सोल्यूशन होता है एम्पलीट्यूड टाइम साइन ओमेगा टी। अब एम्पलीट्यूड आप A1 लिख लें, x1 लिख लें, थीटा नॉट 1 लिख लें, थीटा नॉट प्राइम लिख लें, ये एम्पलीट्यूड है आपस में, यानी कि एंगुलर एम्पलीट्यूड है, ठीक है। जैसे हमने यहां एज्यूम किए थे, ये देखें
हाँ ये हमने जो यहाँ ज्यूम किया था ये वही चीज है, कोई फर्क नहीं है इसमें। यहाँ पे x1 को a1 लिखा था, वहां थीटा 1 की जगह पे थीटा नॉट लिख दें, थीटा नॉट 1 लिख दें, कुछ भी लिख दें, क्या फर्क पड़ता है, वो एम्पलीट्यूड रेशियोज हैं, ठीक है, समझ आ गया। यस सर। जो थर्ड सिस्टम है वो है कपल्ड तो पेंडुलम। 5-1-5-2 जी ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ 5-1-5-2 करना बिल्कुल ठीक है, अच्छा मशवरा दिया उन्होंने, बजाय ये थीटा में फंसने के, बिल्कुल ठीक है, ये आपने अच्छा मशवरा दिया। इसको हम 5-1 कह रहते हैं, इसको हम 5-2 कह लेते हैं, ये रिलेटिव एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ओके, कपल पेंडुलम ये होते हैं सिस्टम्स, आपके पास ये दो पेंडुलम्स है, सेपरेट पेंडुलम्स है, लेट्स से इसको मैं m कह रहा हूँ, इसको भी m कह रहा हूँ, इसकी लेंथ को l कह रहा हूँ, दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा सर 2। जी सर हमने पिछले सिस्टम को सर कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया जैसे हमने फर्स्ट सिस्टम को किया था। नहीं, टाइम ही नहीं है, वो उसी तरह सॉल्व होगा ना, सेम तरह सॉल्व होगा, क्या फर्क है दोनों में, कोई भी नहीं है सर, सेम ही है। कोई भी नहीं, सेम है एग्जैक्टली। आपने थीटा 1 थीटा 2 को वैल्यू पुट कर दी, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से डेफिनेटली चूंकि हम a1 a2 ले रहे हैं, आपने इसकी 5-1 5-2 का मैट्रिक्स बनेगा, उसी तरीके से आप डिटर्मिनेंट लेंगे, आपको फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी इसकी, ठीक है, सेम टू सेम तरीका है, कोई मैं इसका भी सोल्यूशन एक अपलोड कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, मतलब एग्जैक्टली वही है, इस पर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इक्वेशन बनाने में फर्क होता है। इक्वेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो जरा गौर से समझ लें कि वो बनानी कैसे, बाकी एग्जैक्टली वही तरीका, ठीक है। राइट सर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस, एक तो हो गया, दूसरी आप प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, कपल पेंडुलम ये होता है कि आप दरमियान में उसको स्प्रिंग से कपल कर दें, एक स्प्रिंग भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्प्रिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं एक स्प्रिंग ड्रॉ करता हूँ, स्प्रिंग का डिस्टेंस है a दोनों तरफ, ठीक है, तो आपके पास इक्वेशंस क्या बनेगी, अब ये भी चूंकि पेंडुलम सिस्टम है, कपल्ड है, कपल्ड का मतलब दो पेंडुलम आपस में डायरेक्टली तो मतलब नहीं है, लेकिन आपस में स्प्रिंग से कपल्ड है, तो जिसको मैस 1 कहते हैं उसको मैस 2 कहते हैं। अब इसकी इक्वेशन लिखें, तो इसकी इक्वेशन होगी J1 थीटा 1 डबल डॉट, अब J1 है इसका मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड पिवट पॉइंट, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। J1 है इस पेंडुलम 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड पिवट पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक इसकी फोर्स होगी जो कि इसकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी इसके वेट की वजह से, ठीक है, जो होती है mg साइन थीटा, यानी कि माइनस mg साइन थीटा इंटू एल, ठीक है, mg साइन थीटा इंटू एल, ये मोमेंट बन गया, ठीक है, माइनस, ठीक है, एक ही मोमेंट में, और पता साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लेते हैं फॉर स्मॉल एंगल, तो ये थीटा हो गया, माइनस एक इसकी रिस्टोरिंग फोर्स आएगी स्प्रिंग की वजह से, और वो होगी के, अब मोमेंट लिखना है स्प्रिंग का, तो के x1 टाइम्स a, x1 क्या चीज है, x1 इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है जो कि स्प्रिंग के अंदर होगी, और वो बराबर होगी a थीटा के, ठीक है, तो ये बनेगी J1 थीटा 1 डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस mgl थीटा माइनस के a स्क्वायर थीटा, सॉरी स्प्रिंग दोनों के दरमियान में है इसलिए थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, दोनों के आपस में स्प्रिंग लगे ना, रिलेटिव मोशन होगी थीटा 1 माइनस थीटा, ये फर्स्ट मैथ्स की इक्वेशन होगी, सेकंड की, सॉरी m1 है, m ही लिया हमने, चल इसको m1 m2 कर लेते हैं, और J2 थीटा 2 डबल डॉट इक्वल्स टू सेम माइनस m माइनस m1 सॉरी m2 gl थीटा, सॉरी थीटा 1 है, थीटा 1 हम फर्स्ट की थीटा 1 है, सॉरी माइनस के ए स्क्वायर, और वही आपने रूल इसमें करना थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये दो इक्वेशन से बनेगी, ठीक है। इसमें भी वही तरीका है, रेस्ट के आपने थीटा 1 थीटा 2 को सॉल्यूशन अज्यूम करें, सेम तरीके से सॉल्व करें, और आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और मोड शेप्स आ जाएंगे, इसमें कंफ्यूजन। अच्छा, ये मैंने ऐसा लिया कि स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग ये लगा हुआ है, ठीक है, तो जब ये लेफ्ट राइट पेंडुलम एंगुलर मोशन करेगा, और चूंकि एंगुलर मोशन स्मॉल होगी तो एक्स में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी लेफ्ट राइट पे, तो जब थोड़ी बहुत लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी, तो चूंकि हमने इसको एक्स मोमेंट लिखना है, तो ये होगी स्प्रिंग फोर्स,
स्प्रिंग फोर्स होगी ना के एक्स इंटू मोमेंट आर, तो के एक्स इंटू ए हो गई। अब एक्स जो डिस्टेंस है वो स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट है लीनियर, और अगर हम उसको रिलेट करें आर्क लेंथ के साथ इस तरह, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी आपके पास ये होगी बराबर ए टाइम्स इट्स एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि ए थीटा के बराबर होती है। तो जब आप x1 को ए थीटा पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ये एक के ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि इसके ये दो पेंडुलम के दरमियान में लगी हुई है, इसलिए इसको हमने रिलेटिव लिखा है, यानी कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखा है, और दूसरे केस में इसको थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखा है, ठीक है। अगर इसमें कोर स्प्रिंग आ जाए, लेट्स से यहाँ पे कोर स्प्रिंग हो और उसका डिस्टेंस लेट्स से बी हो, ये कोई फर्क नहीं, स्प्रिंग तो मैं मैसेज होनी चाहिए, स्प्रिंग जितने मर्जी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगी, वो होगी माइनस के बी स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इक्वेशन आ जाएगी माइनस के बी स्क्वायर थीटा 2 माइनस थीटा 1। बाकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, जितने नंबर ऑफ कनेक्शन होंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्म ज्यादा होंगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इसमें आप इक्विवेलेंट स्टिफनेस नहीं ले सकते, उसकी वजह क्या है कि ये मोमेंट है, और मोमेंट स्प्रिंग का जिस पॉइंट पे स्प्रिंग अटैच होता है वहां पे लग रहा होता है, इसलिए इसमें ये नहीं लेना कि दो स्प्रिंग लगे हैं तो आप कहें जी ओह ये तो दो स्प्रिंग पैरेलल में लगे तो मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूं, ये गलत होगा। मोमेंट के इक्वेशंस में क्योंकि मोमेंट आर्म डिफरेंट होता है, इसलिए नेट स्प्रिंग मोमेंट भी डिफरेंट होता है। रोटेशनल सिस्टम या जिसमें जे थीटा डबल डॉट आता है, वहां पे कभी भी आप स्प्रिंग को इक्विवेलेंट स्टिफनेस नहीं लेते। जहां पे ट्रांसलेशन सिस्टम है, जहां पे दोनों स्प्रिंग की मोशन बराबर है, वहां पे आप ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा को समझ आ गया? समझ आ गया? यस सर, क्लियर है सर। और आगे आपका एग्जैक्टली उसी तरीके से ये सारा सॉल्व। इसका भी एक केस मैं अपलोड कर दूंगा, केस जिसके अंदर हमने जो है वो ये दोनों जो मैंने केस अपलोड करूंगा उसमें ये दोनों जो है वो ये बेसिकली स्टिक्स की फॉर्म में है पेंडुलम, यानी कि ये कंपाउंड पेंडुलम की फॉर्म में, और यहाँ पे 3 स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो मैं आपको जानूंगा कि बेसिकली फर्क क्या होता है। इसका J1 जो होता है वो इसका J1 जो है वो ml स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका मैथ सारा एंड पे कंसीडरेट होता है। मैं बताया था कि फॉर द कंपाउंड पेंडुलम J1 इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 3, बस ये फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। और मैं जहाँ पे ये डिफरेंट तरह की इसकी लेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक चीज कंपाउंड पेंडुलम में होती है, इसकी जो रोटेशन जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो सेंटर में लगती है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ने ये गलती बहुत ज्यादा की थी कि जो कंपाउंड पेंडुलम होता है, सॉरी सिंपल पेंडुलम की एंड मास के एंड पे लगती है, कंपाउंड पेंडुलम के सेंटर में लगती है। तो इसकी लेंथ L है तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है mgL/2 इंटू थीटा। तो ये आपने लाजमी ज़हन में रखना है, ठीक है। इसका मैं केस स्टडी अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर जो है वो 2 डिफरेंट तरह के पेंडुलम्स की डिफरेंट लेंथ्स है और नंबर ऑफ स्प्रिंग 3 है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं पूरा सोल्यूशन अपलोड करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस केसेस में कैसे सॉल्व करना है। तो ये सिंपल पेंडुलम भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड पेंडुलम भी हो सकते हैं। जो हमारे पास लास्ट सिस्टम है, जो फोर्थ सिस्टम है, वो है डबल पेंडुलम। डबल पेंडुलम क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ कपल्ड पेंडुलम हमारे पास दोनों पेंडुलम इकट्ठे अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि एक पेंडुलम दूसरे के साथ अटैच होता है, ठीक है। इन दिस स्पेसिफिक केस इसको हम θ1 कह लेते हैं, इसको हम θ2 कह लेते हैं। ये दोनों डिफरेंट होते हैं क्योंकि दरमियान में कोई रिजिड कनेक्शन नहीं होता। अच्छा, अब इसमें जो हम फोर्सेस लिखते हैं वो टेंशन के साथ लिखते हैं, या मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि इसकी एक ही रिस्टोरिंग फोर्स है और वो है इसके वेट की वजह से, और वो है mg sin थीटा, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे इसी इक्वेशन लिखेंगे J1, इसको अगर मैं 1 कह लूं, इसको मैं 2 कह लूं, मैं या चलो ठीक है पहले मैं 2 की लिखता हूं। J2 θ2 डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस mg sin θ2 इंटू ये इसकी जो भी लेंथ है यहां तक इस पॉइंट तक इंटू L, ये इसकी बस एक इक्वेशन बन, इसमें कुछ और तो नहीं होता। लेकिन जो फर्क है इसके अंदर वो ये है कि जब आप इसकी रिस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स में इसका J भी ऐड होता है,
ठीक है, यानी कि इस मैच को ये फील होता है कि इसको भी रिस्टोर करना है, तो इसका जे इनफैक्ट जो होता है वो इस तरह होता है। ये बस थोड़ा सा फर्क होता है डबल पेंडुलम में। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कपल पेंडुलम में इशू नहीं होता कि कपल पेंडुलम में दोनों के अपनी इंडिपेंडेंट पिवट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए उसमें ये इशू नहीं होता। डबल पेंडुलम में ये इशू होता है कि आपके पास जो लेट से ये वाला जो पेंडुलम है ये तो अपनी ओन पे रिस्टोर कर लेता है, बेशक ये भी मूव करेगा साथ, लेकिन इसको रिस्टोर करने के लिए अपने आप को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं कि वो इसको एज ए पिवट पॉइंट यूज करेगा। लेकिन जब ये अपने आप को रिस्टोर करेगा, क्योंकि इस पेंडुलम कनेक्शन बेस के साथ नहीं है बल्कि इसके साथ है, तो इसको डबल मोमेंट फील होगा, और वो मोमेंट होगा J2 प्लस J1। J1 इसका अपना मोमेंट प्लस J2 इसका मोमेंट टाइम्स θ1 डबल डॉट, और इसमें भी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो माइनस इसका जितना m है उसका m वो आप लिखेंगे, सॉरी J इसका वही सर, होगा, जी एक सॉरी सर इसका M1 प्लस M2 कर देना सर, ताकि डिफरेंस पता चल जाए। हाँ, इसका सॉरी J1 ही होगा, इसके इसमें फर्क नहीं आएगा डिस्टर्बिंग इनर्शिया में, रिस्टोरिंग इनर्शिया में फर्क होगा, और वो फर्क होगा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, M1 M2, और ये फर्क होगा माइनस M1 प्लस M2 टाइम्स G साइन थीटा इंटू L। इसको मैं L1 कह लूं, इसको मैं L2 कह लूं, L1, ये फर्क होगा बस, इसका J नहीं आएगा। ये डिस्टर्बिंग इनर्शिया तो वही होगा जो रिस्टोरिंग इनर्शिया, रिस्टोरिंग मोमेंट जो है उसके अंदर आपको मैसेज ऐड करने पड़ेंगे, और ये काफी सिंपलेस्ट होता है। इसमें सिर्फ एक यही बात होती है डबल पेंडुलम में कि आपके पास चूंकि पेंडुलम की एक ही रिस्टोरिंग फोर्स होती है, वो उसके वेट की वजह से होती है, ठीक है, वो जो हमें ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन डबल पेंडुलम के केस में सिर्फ जो फर्स्ट मैच होता है वो बेसिकली डबल फील करता है, जो नीचे वाले मैच को भी रिस्टोर करना होता है तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं वो इनफैक्ट डबल होती है, बस ये फर्क। और रेस्ट इसको वही तरीका, एग्जैक्टली वही तरीका सॉल्व करेंगे, वही θ1